This call is now being recorded. So students, we have started with the chapter of a system. Like if you go through the syllabus, you can see clearly that we have covered so far is LTI system, a static and a dynamic system, time variant, time invariant, linear, non-linear, causal, non-causal, stable, unstable systems as well. Like if you go through it, we have started with the introduction part. Then we classified signal as a continuous system. It could be a discrete time system. Like, for example, a system is working only on continuous signal. We say that system is a continuous time system. If we talk about a discrete time signal, like a signal is working only on discrete time, so we call this as a discrete time system. Then we talked about a linear non-linear system. Then we talked about time variant, time invariant system, a shift variant, shift invariant system, causal or a non-causal system. Then we talked about static and dynamic system. And lastly, yesterday we talked about stable and unstable system, wherein we talked about Karina Kapoor, like BIBO, bounded input, bounded output, BEBO. So, for example, if I'm providing a bounded input, so I should get a bounded output. Then we say a system is BIBO stable. If it does not satisfy the condition, we say system is unstable in nature. Now, before I start, can anybody be a volunteer and explain me what do you mean by linear, non-linear, time variant, time invariant, causal, non-causal, static and dynamic, stable, unstable? Can just a short review, like what do you mean by that? Anyone in your class? Yes, can say about it. Like what do you mean by a static, dynamic, linear, non-linear? Sir, in static systems, only present inputs are there. In dynamic system, present, past, and future inputs could be there. Correct, correct. Okay, so you rightly told in case of static, you have only present, but in case of dynamic, it could be past, it could be future as well. In case of static, only present. Fine. What about causal? In causal, there could be a combination of present and past input, but in non-causal, it could be a combination present, past, and future inputs also. Correct. In case of causal, you have only present value or at the most past, but in non-causal, you take future values into consideration. So non-causal is also known as predictive anticipatory. Like you can predict what would be happen next. Okay, fine. Very nicely answered, sir. What about time variant, time invariant? क्या होता है टाइम Sir, वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट? time invariants are Yes, Sir, yes. in time invariant, the output varies according to the time. Okay, In time variant, the output varies according to the time, while in time invariant, the output doesn't varies. It is time independent. correct, correct. Nicely answered, ma'am. What about linear, non-linear? What about linear and non-linear? Sir, in linear systems, the output follows the input. As input increases, output increases. But this principle is not followed by non-linear systems. Correct, correct. In linear, you have superposition theorem. In linear, you have homogeneity principle. In time variant, हम क्या करते हैं वहां पे like delayed input का जो output मिलेगा मुझे same output I will get even if I delay the output by same amount of time. I will get the same output if it is time invariant, right? Causal, present plus past. Non-causal is including future as well. In static, only present is taken into consideration. In dynamic, you have present as well as future into consideration, as well as past. That is dynamic. In case of stable, we know very well. If you're providing bounded input, I must get a bounded output. If I'm not getting a bounded output, even if I provide bounded input means it is finite. फाइनाइट इनपुट अगर मैं देता हूं, अगर मुझे इनफाइनाइट आउटपुट अगर आता है तो मैं क्या कहूंगा, इट इज एन अनस्टेबल आउटपुट बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द बीबो स्टेबिलिटी केस. ओके. Now let me see how much you have understood, sir. So causal depends on present and past, does not depend on future. Non-causal depends on future as well. Okay. These are like just examples. Like real-time systems are causal systems. Population growth, weather broadcasting, these all are non-causal. Like है ना, जैसे हम लोग को कहा जाता है कि 10 साल के बाद में पॉपुलेशन इतना होगा. Like tomorrow there could be a possibility of rain, so carry umbrella along with you. These all are non-causal systems.
Okay, they are not practically realizable. You cannot realize a non-causal system. Fine, okay. Then you have time variant, time invariant. ये भी हम लोगों ने देखा था वहां पे कि अगर मैं इनपुट को डिले करता हूँ तो x of n, यहाँ क्या हम लोगों ने फिर ये भी टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. Fine, you can read the lines, you will understand like what is the meaning of time variant, time invariant. Same wordings यहाँ पर. Input output relationship changes with the time, जैसा रेणुका मैडम ने कहा यहाँ पे. And in case of time invariant, the input output does not changes with time. Fine, same wordings of Renuka ma'am. Then you have static and dynamic. In case of static, it depends only on the present. Where in case of dynamic, it depends on present, and also it could be past or future. Like you have n minus one past. So obviously, static systems are memory less, but in case of dynamic, require a memory in order to remember, right? So here, output does not depends on delayed or the advanced. Here, output depends on present, delayed, and advanced. That we call it the meaning of dynamic. So, like, I hope you have got some idea behind it. Like, what is the basic idea of all this? Now, क्वेश्चन इस तरीके से आता है. अभी फटाफट मुझे बोलने का कि कौन सा सिस्टम क्या है. क्वेश्चन ये दिया है आपको. Determine whether the following conditions, continuous time signals are static or dynamic, linear or non-linear, shift, variant or invariant, causal or non-causal, stable or unstable. फटाफट बोलिए मुझे आप. नंबर 1, y of t is equal to 10xt plus 5. y of t is equal to 10xt plus 5. ये सिस्टम को क्या कहेंगे हम लोग? इट इज स्टैटिक और डायनामिक. Non-linear. Non-linear. Give me the reasoning as well, like why it is so. Also give me the reasoning. सर नॉन लीनियर क्योंकि y ऑफ t में एक +5 है जिसके कारण नॉन लीनियर नहीं होगा. Yes, the system is non-linear. Okay, fine. And what about the static? Static or dynamic? First case. Static. Static. Okay, fine. तो system is static. पहला system आपका static है, non-linear है. What about shift variant or shift invariant? I mean time variant है कि time invariant है वो? अभी सब पढ़ा के हो चुका है. अभी आपको now you have Time to do it. invariant. Invariant. Time invariant. Fine. What about causal and non-causal? Causal है कि non-causal आएगा वो? Causal. Causal. Because it's only depending upon the present. Fine. Okay. Why we call it a shift variant or invariant? Because there is no txt वाला term. अगर txt वगैरह term वाला अगर होता वहां पे t.xt तो हमने क्या कहे होते उसको shift variant. Why it is static? Because only present input is available. Fine. Okay. Why it is non-linear? Because when you provide x of t as 0, will you get 0 output? No. What you will get output as 5. मुझे 0 मिलना चाहिए था ना. अगर मैं इनपुट 0 दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट 0 मिलना चाहिए था, बट आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है. तो वी से दिस इज अ नॉन-लीनियर सिस्टम. ओके. वेदर सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल. सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल. लगाइए आपका बेबो को याद करिए. According to Bebo, is it stable or unstable? It is stable. Why? Because if I provide x of t, for example, 2, 10 2s are 20, 20 plus 5 25. अगर x of t अगर मैं 2 रखता हूँ, if x of t is 2, 10 2s are 20, 20 plus 5 25. Yes, 25 is a finite number. It is not infinity. So we said it is a stable system. Understood? Okay. Now talking about second वाला. Second वाला बताइए मुझे. चेक करिए आपका आंसर. इट इज स्टेबल सिस्टम. Rightly answered. Linear or non-linear? Yes, it is non-linear. Is it shift variant, invariant? Yes, it is time invariant. Causal, non-causal. The system is causal in nature because only depends on the present of this thing. And if you apply bounded input x of t, then the output will be also bounded. The system is stable. Thus, the given system is static, non-linear, time invariant, causal and stable. ऐसा आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो. अभी ये वाला बताइए. dy plus ty equal to x of t. Whether it is static, dynamic, स्टेबल, अनस्टेबल, लीनियर, नॉन लीनियर, क्या कहोगे? ये जो हमने पढ़ा था ना 5 प्रॉपर्टीज. लीनियर क्या क्या आएगा यहाँ पे? वेदर इट इज लीनियर, नॉन लीनियर, व्हाट इज इट? Non-linear. व्हाई नॉन लीनियर मैम? इट शुड बी रीजनिंग ना. एबीसी तो चल नहीं रहा है कि भाई चलो ए बोल दिया फिर नहीं ए नहीं सर बी.
we studied everything. क्या लगता है आपको? ओके, व्हाट अबाउट टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट? चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको फिलहाल के लिए. व्हाट अबाउट टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट? dy dt y of t plus dyt equal to x of t. This is the question. Whether it is time variant or time invariant. Variant. That सर वेरिएंट सर टीडी है नीचे तो वेरिएंट लग रहा है. correct. TYT होने की वजह से इसका क्या कहोगे? It is a time variant system. You said the system is time invariant, right? It is correct because it is comprising of t by t. The system is linear in nature. If you try to solve this using the proper superposition principle, like applying zero input, t by t plus t by t equal to 0, x of t equal to 0 the idea, but by remaining steps, the first I give x1 of t, then I give x2 of t, then y of t will be what? y1 plus y2 and so on. Then you combine both the inputs, then you check it out, yes, both are satisfying, so this system is linear in nature. What about this thing? System is static or dynamic? Yes, it is static. Why? Because it only have x of t, so it depends only on the present input x of t. The system is static in nature. That's also, it suffices. What about stable, unstable? Is it stable system or unstable system? Stable. Stable. Why stable? Because if you provide x of t equal to 2, for example, x of t equal to 3, the answer you will be getting again in a finite form. So yes, it is a stable system. Okay, let's see. Fine. It depends. Present output is there, so you say it is a causal system. Okay, now let's try with this now. Y of t is equal to x of t cos of 100 pi t. Come on, tell me whether it is linear or non-linear. Static So system तो है, non-linear. because static system तो है. Why it is static? Because यहाँ पे दिख रहा है आपको x of t is that is depending only on the present. It is static. So what about linear and non-linear? Why it is linear? Because when you first you provide zero input to it. Zero input अगर देते हो तो x of t will be 0, है ना? तो 0 into cos of 100 pi t will become 0 eventually. Now if I apply superposition theorem, like if providing x1 of t, then you give x2 of t, then x1 t cos pi t plus x2 of t, fine, then you give directly combined output. So if you try to solve them, you will get same thing, like both are equal, same, RHS is same. So obviously it is a linear system. What about shift variant or shift invariant? Shift variant, shift invariant. अगर दोनों सेम नहीं है तो बोलने का वेरिएंट, अगर सेम आता है तो बोलने का इनवेरिएंट. एक बार आप t को t माइनस के करोगे, है ना, फिर सेकेंड टाइम पे जहां जहां t वहां वहां t माइनस के. डोंट यू थिंक यहाँ पे t है और यहाँ पे भी t है, तो एक बार ये t माइनस के हो जाएगा, सेकेंड टाइम पे t माइनस के, दिस वोंट बी सेम.
we say system is time variant. Yes or no? Correct ना? देखो ना, वही कहा ना हम लोगों ने, t minus t zero, Yes, sir. t minus t zero, इधर भी t minus k आने वाला है. तो like this gives that system is time variant because यहाँ पे आपने not बोल दिया, they are not equal. मैंने कहा था आपको बंदूक याद रखने का, अगर आपने बोले यहाँ पे not equal, it is time variant. Okay, what about causal, non-causal? Causal, sir, because of present input. Yes, present input का जो system is causal in nature. What about stable, unstable? Stable, Stable sir. or unstable? Yes, it is Input is stable. Why? bounded, Because output when is you also provide bounded. बाउंडेड इनपुट अगर आप देते हो तो आपको आउटपुट भी बाउंडेड ही मिलेगा. Equation output contains cosine function. The maximum value of the cosine function is 1. So if we apply bounded input, then the output is always bounded. It is a stable system. So the system is static, linear, time variant, causal and stable system. ये चीज तो हम लोगों ने देखा था, है ना? ये सेम थिंग वी डिड. यहाँ पे फर्क इतना है कि थर्ड वाला एग्जाम्पल अगर आप देखते हो, थर्ड वाला एग्जाम्पल, ये वाला, एक सेकंड है, थर्ड नहीं, अबाउट सेकंड वाला, डी बाई डी टी वाई ऑफ टी प्लस टी, देयर इज टी टर्म, टी वाई टी, यहाँ पे टी वाई टी आ रहा है, यहाँ पे क्या है, 10 वाई टी है. थर्ड वाले वो वाले केस में 10 वाई टी आ रहा है, यहाँ पे टी वाई टी था, फिर इस टी वाई टी, याद रखिए इसको, टी वाई टी था, और वहां पे आने वाला है अभी 10 वाई ऑफ टी. फाइन, only this is the change. So now can you comment whether it is a linear, non-linear, static or dynamic? ये पॉइंट बोलिए फटाफट, देखते कितना आपका माइंड शार्प, हाउ मच इंटेलिजेंट यू गाइस आर. सर लीनियर. Linear, causal, ओके, Static. लीनियर. सिस्टम इज लीनियर, कॉजल, ओके. स्टैटिक आएगा कि डायनामिक आएगा? व्हाई दिस सिस्टम इज डायनामिक इन नेचर सर? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना. करेक्ट करेक्ट. व्हेन यू डू द डिफरेंस, अगर आपको पता होगा कि हम लोगों ने स्कूल डेज में पढ़ा था कि जनरली व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन. एक सेकंड ना, if I talk about differentiation, so we have studied over there that इसको हम लोग कहते थे फर्स्ट प्रिंसिपल, dy by dx is given by limit of, याद है कुछ है, h tends to 0 divided by h, something like this kind. फिर कुछ ऐसा होता था, f of x plus h minus of f of x upon h, the first definition of derivative. अगर ये नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी ले सकते हैं. व्हाट इज dy सर? dy is difference in y. So either you take x plus h minus x, or you say either x minus of x of minus h. मतलब नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, या फिर प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू. So don't you think you require either the future value here, and here you require the past value? Fine. And ये फ्यूचर और पास्ट कौन डिफाइन करता है? ऑब्वियसली द डिफरेंशिएशन में आने वाला ये. एंड फ्यूचर पास्ट कहाँ पे डिफाइन होता है? इन केस ऑफ नॉन कॉजल सिस्टम, इन केस ऑफ डायनामिक सिस्टम. दैट इज द रीजन इट इज डायनामिक एंड डायनामिक सिस्टम. इसके हम डायनामिक कहेंगे. अगर इसका कॉजल क्यों कहा गया है? अगर मैं ये डेफिनेशन से अगर लेता हूँ, इफ आई गो विद दिस डेफिनेशन लाइक पास्ट वाला सिस्टम, दिस इज अ कॉजल इन नेचर. ओके, इट इज स्टैटिक सिस्टम. ये वाला चल रहा था ना हमारा, static dynamic system, it is linear and it is shift invariant, causal and stable system. Okay, chalo, can you try this last question now? X of t plus 10 plus x square of t. लीनियर. Yeah, the system Dynamic. is non-linear. Correct. Why it is non-linear? You can check it over here. सबसे पहले जीरो इनपुट दिया, वो तो हो गया, बट यू हैव टू चेक विद अदर प्रॉपर्टीज एज वेल.
यहाँ पे x1 टी करिए तो x1 टी प्लस 10 हो जाएगा प्लस x1 स्क्वायर होने वाला है, फिर x2 दीजिए ये होगा, देन यू ऐड देम, तो दिस ऐड करके ये आया, ये दो ऐड करके ये आया, नाउ यू गिव x1 प्लस x2, so this will become what then, x1 plus x2 का square, you'll get that 2x1 x2 वाला term, so this won't be same, then it will be a non-linear system. Understood sir difference? यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर आ रहा है, लेकिन अगर आप एक साथ दोगे x1 प्लस x2, you will get this term x1 प्लस x2 the whole square, और इसका ओपन करोगे ब्रैकेट को तो क्या मिलेगा आपको, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2, एंड दिस 2x1 x2 टर्म विल नॉट बी अवेलेबल ओवर हियर, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा टर्म वो, वी से दिस इज नॉट इक्वल एंड हेंस सिस्टम इज नॉन लीनियर इन नेचर. देन व्हाट अबाउट शिफ्ट वेरिएंट, शिफ्ट इनवेरिएंट, उसमें है ऐसा कुछ टर्म टी एक्स टी वाला? नहीं है उसमें कुछ टर्म ऐसा टी एक्स टी वाला. इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग दैट प्रोसीजर के जहाँ जहाँ एक्स ऑफ टी, वहां पे पहले मैं टी माइनस टी जीरो करूंगा, तो यहाँ पे मैंने दो जगह पे टी माइनस टी जीरो कर दिया, फिर जहां जहां टी, तो ऐसा कोई टर्म ही नहीं है कि जहाँ पे टी ऐसा अकेला दिख रहा है मुझे, तो ऐसे दिस इज इक्वल, तो इक्वल यहाँ पे मैंने क्या बोला, इक्वल, तो आई नीड टू यूज व्हाट, नॉट ओवर हियर, तो ऐसे दिस इज नॉट वेरिएंट, बिकॉज यहाँ पे अपने इक्वल बोला ना, यहाँ पे नॉट यूज वर्ड यूज ही नहीं किया, so now you have to fire that not over here, we said system is not invariant. Okay, now what about system is causal or non-causal? Causal or non-causal? Non-causal. Non-causal. It has t plus Causal 10, t plus 10 which Giving means future value. T plus in future value exactly advanced, future or advanced, so it is a non-causal, and also this is a dynamic system because again it depends upon the future or the advanced input. Okay, तो पूरा समझा अभी आपको कैसे करना है ना, इट इज इजी नाउ, यू कैन डू इट. कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, एग्जांपल ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, y of t is equal to x of t square, आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट. इफ यू पुट t इक्वल टू 2, 4 मिल रहा है आपको, 3 दिया तो आपको 9 मिलेगा, तो दिस इंडिकेट्स सिस्टम इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इनपुट्स, so we say it is dynamic system. Linear or non-linear? It is linear in nature, है ना, x1 t square plus x2 t square, फिर एक साथ भी अगर दिया x1 plus x2, तो you will get the same thing. It is linear in nature. Shift variant, shift invariant, x of t square है यहाँ पे, तो yes, because आप t minus t zero लिखने वाले हो, तो जहाँ पे x of t है वहां पे x of t minus t zero लिखना है फर्स्ट केस के लिए. सेकंड केस में जहां जहां t वहां t minus t zero, यहाँ पे उसको टर्म ही नहीं कि जहाँ पे t अलग आ रहा है, तो वी से सिस्टम इज इनवेरिएंट इन नेचर. एक सेकेंड, हाँ ये देखो, ये इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिली, मेक अ नोट ऑफ दिस, हम लोग ये मिस्टेक कर रहे थे. y of t कॉमा टी जीरो x of t स्क्वायर है ना, यहाँ पे अपना वो प्रॉपर्टी अपने यूज नहीं होगा टी एक्स टी वाला, x of t स्क्वायर है यहाँ पे, तो पहले टाइम हम लोग क्या करोगे, x of t स्क्वायर के जगह पे टी स्क्वायर माइनस टी जीरो, x of t स्क्वायर माइनस टी जीरो, ये देखिए x of t स्क्वायर माइनस टी जीरो, ये फर्स्ट केस में. सेकंड केस में आपको जहां जहां t है वहां t माइनस टी जीरो लिखना है, तो फिर ये हो जाएगा अंदर अभी होगा t माइनस टी जीरो, एंड नाउ दिस टू आर नॉट इक्वल, दैट इज द रीजन विद शिफ्ट वेरिएंट. सो काइंडली मेक दिस थिंग नोट इन योर नोटबुक. यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या लगा कि हाँ भाई देखें यहाँ पे टी एक्स टी टर्म नहीं है तो ओके इट इज शिफ्ट इन वेरिएंट, बट इट इज नॉट द केस. यहाँ पे सी मेक अ नोट, इट इज अ वेरी स्पेशल केस. सबको समझा है शिफ्ट वेरिएंट कैसे हुआ ये, व्हाई इट इज नॉट शिफ्ट इन वेरिएंट, स्पेशल केस है ये. यहाँ पे शॉर्टकट यूज मत करिए कि यहाँ पे टी एक्स टी टर्म नहीं है तो चलो भाई हो गया. आउटपुट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इनपुट, इट इज अ नॉन कॉजल सिस्टम. इफ यू अप्लाई बाउंडेड इनपुट, so it is a stable system. The given system is dynamic, linear, shift variant, non-causal and stable. ऋतिक एक चीज नोट किया क्या? ऋतिक आर यू देयर? हेलो. ये सर हाँ, तो कल का हमारा जो डिस्कशन था, कल तुम्हारा डाउट था कि सर मतलब इसका मतलब तो ये है कि कोई सिस्टम फिर अनस्टेबल हो ही नहीं सकता है. ये सब बाउंडेड में सर. हाँ, because whenever you give a bounded input, obviously you will get bounded output itself. ये और सर एक अपन ने जितने भी क्वेश्चन देखा अब तक हर जगह पे वही दिख रहा है, स्टेबल स्टेबल स्टेबल. रेयरली यू गेट द सिस्टम इज अनस्टेबल. ये सर तो वैसे हम लोग एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बट स्टिल लाइक डोंट गेट इनटू प्रेडिक्शन, बिकॉज कभी कभी दिवाली हमारे साथ में नहीं होती है, एवरी डे इज नॉट संडे. जैसे यहाँ पे हमारे साथ में मिस्टेक हुआ,
हमने क्या देखा कि हाँ एक्स ऑफ टी स्क्वायर, तो चलो भाई एक्स ऑफ टी स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे टी एक्स टी टर्म नहीं है, तो डायरेक्ट हमने आंखें बंद करके हमने बोल दिया कि भाई दिस इज शिफ्ट इन वेरिएंट। बट यहाँ पे हमको हमारा पोपट हो गया वो। You should take this a special case. Like you should open up your mind and keep your eyes wide open and then start doing the question. वरना बहुत बड़ी पेनल्टी भरना पड़ी हम लोग को एग्जाम के टाइम पे। Fine. Anyway, so like I hope you all students have got the complete idea कि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है based on such kind, like आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा कि check whether the system is stable, unstable, static, dynamic, you will be able to do it. अगर फिर भी नहीं समझा है कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करिए, इट इज वेरी इजी। दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी सिंपल सब्जेक्ट, देयर इज नो एनी रॉकेट साइंस रिक्वायर्ड एज सच के सब्जेक्ट के लिए कोई चीजों का प्रीरिक्विजिट होना जरूरी है, कंट्रोल सिस्टम आना चाहिए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आना चाहिए, तो कुछ भी नहीं है। बेसिक मैथ्स इज रिक्वायर्ड, दैट्स इट, एंड अ सिंपल लॉजिक। इट इज वेरी वेरी सिंपल सब्जेक्ट। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स 4.2 जो हमारा आज का एजेंडा जिनको डिस्कस करना है। impulse response, ट्रांसफर फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ये हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद 4.2 नाउ। बिफोर वी स्टार्ट विद 4.2 वी हैव टू मूव आवर आईज टुवर्ड्स ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट, बिकॉज जब तक आप ट्रांसफर फंक्शन नहीं डिसाइड करते तब तक हम लोग उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स हम नहीं कर सकते। इट इज सिंपल सर, करेक्ट ना? व्हाट इज अ ट्रांसफर फंक्शन? यू नो वेरी वेल। ट्रांसफर फंक्शन मतलब वो होता है कि आपने सिस्टम बना दिया और सिस्टम को आपने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद में इनपुट मल्टीप्लाइड बाय गेन विल गिव यू आउटपुट। So that gain, that multiplication factor, that is actually the transfer function of a system. So first you understand what is a transfer function, and then you provide an impulse input, and then you get the response out of it. It is like you will understand the link, understand the hierarchy. Okay, so proceeding forward, मैंने कहा था आप लोगों को like you go through the video which I have made on YouTube on transfer function, like intro to control system. अगर आप लोगों ने वीडियो अगर वो देखा है तो आपको थोड़ा और इजी होगा समझने के लिए। अगर नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, विल एक्सप्लेन व्हाट इज बेसिकली ऑल अबाउट। सो पहले आप ये वर्ड को समझिए, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मतलब क्या? फंक्शन मींस फंक्शन कुड बी ऑफ टाइम t, टाइम डोमेन, और फंक्शन कुड बी ऑफ लैप्लासियन डोमेन एज वेल, s डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन जिसको आप कहते हो। और इसके ऊपर वीडियो हम लोगों ने बना चुके हैं, लाइक वी अंडरस्टूड व्हाई वी रिक्वायर टाइम डोमेन, व्हाट इज द नीड ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन, and how do we convert from time domain to frequency domain. When you convert from time domain to frequency domain, you could either use Laplace transformation, you could use Fourier transformation. अगर discrete अगर है तब क्या यूज करोगे? You'll be using what? Z transformation. Fine. The Z transformation is used for discrete systems, discrete signals. Continuous अगर है तो फिर आपके पास में दो ऑप्शन आ जाता है, आप Laplace यूज करिए या फिर आप Fourier यूज करिए। That was the meaning of function. That was what we talked about function. Okay. Then we'll be dealing with the transfer. आपने सुना होगा ट्रांजिस्टर। व्हाट इज अ ट्रांजिस्टर? बेसिकली ट्रांजिस्टर इज एन एक्रोनिम। ट्रांजिस्टर इज फॉर ट्रांसफर रेजिस्टर। ट्रांजिस्टर इज फॉर ट्रांसफर रेजिस्टर because over there you take output voltage VCE divided by input current. Okay, it is like output upon input. So can I say as a whole, transfer function is a function maybe of time t, or it could be of S domain. It could be a frequency type, but it will give me the relation of output with input. तो इतना आइडिया थोड़ा मेरे माइंड में क्लियर हो गया ये वर्डिंग्स को पढ़कर, है ना? पहले हम लोग वर्ड्स को टटोलना शुरू करते हैं कि वर्ड कहने का चाहता है। ओके, नाउ ये सिस्टम दे है मेरे पास में, ये सिस्टम को हम इनपुट देने वाले हैं आर ऑफ टी, और ये सिस्टम को जब मैं इनपुट देता हूँ आर ऑफ टी तो मुझे आउटपुट मिलने वाला है सी ऑफ टी। अभी सवाल ये उठता है कि सर आपने इसको नाम आर ऑफ टी क्यों दिया और सी ऑफ टी क्यों दिया? इट्स एन ऑब्वियस क्वेश्चन सर। आई बोलिए, ओ बोलिए, आर और सी क्या है? ये इसीलिए कहा जाता है आर ऑफ टी को, एक्चुअली इसका नाम है रेफरेंस इनपुट। आर स्टैंड्स फॉर reference input R of t. That is the reason we write here R of t and not I of t. Is it clear to you why I'm writing R of t? What I'm typing here, it is what? Reference input. Why it is reference input? Because obviously whatever input you give, it could be a non-standard, it could be a standard. अगर non-standard भी अगर रहा तो इसको standard से represent कर सकते हो ना, जैसे आप लोगों ने किया था, हम लोगों ने कल के प्रैक्टिकल में किया, परसों के प्रैक्टिकल में हम लोगों ने किया। सर क्या क्या वहां पे हम लोगों ने
we were having a heavy side from, we were having a staircase signal. What is a staircase signal? क्या staircase signal क्या होता है? Don't you think staircase signal is made up of a unit step like u of t plus u of t minus 1 plus u of t minus 2 plus u of t minus 3? So can we say these all functions like exponent, linear exponent है, फिर हमारा unit step है, parabola है, ramp है, these all are standard elementary signals. That is the reason we call this as a reference input. Means I'm going to provide an input which I know like what is the input, what is the meaning of reference input R of t. Okay. This is controlled output C of t because obviously system is going to control. करेक्ट ना? अगर समझो मैंने यहाँ पे नेताजी को खड़ा कर दिया, नेताजी को बोला क्या भाषण दीजिए, नेताजी इज गिविंग भाषण, that is input voltage Vi, and the output which I'm going to get, obviously I'll be controlling the output. How much output do I want? ऐसा तो नहीं कि मुझे पूरी इंडिया को भाषण सुनाना है वो, ओनली द पीपल who are there in the शिवाजी पार्क का जो ग्राउंड है मेरा, वो ग्राउंड में जो मुझे लोग जो खड़े, वो ग्राउंड के लोगों को ही मुझे सुनाना है. So I'll be controlling the gain, I'll be controlling the amplification in such a way that only that much amount of people is able to hear what he's trying to say. Correct? That's what we call it as a controlled output C of t. So you have R of t and you have C of t. So this is in terms of time domain. अगर मैं लैपलास डोमेन में बात करता हूँ तो ये पर हम लोगों ने क्लियरली देखा था लैपलास डोमेन में क्या होता है, छोटा r को कैपिटल में लिखा जाता है, छोटा c को कैपिटल C में लिखा जाएगा और ब्रैकेट में t के जगह पे s आने वाला है. तो बेसिक आइडिया है. जैसे हम लोगों ने किया था ना छोटा f ऑफ t, वहां पे हमने कल करेंगे कैपिटल f ऑफ s, इफ यू रिमेंबर इन केस ऑफ लैपलास. दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ सिस्टम इन टाइम डोमेन. दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ सिस्टम इन लैपलासियन डोमेन. ओके. नाउ transfer function will be obviously for a system which will give the relationship of what? Relationship of C of t with input R of t. Okay. So now henceforth जब कभी भी आप ट्रांसफर फंक्शन का मैथमेटिकल इक्वेशन देखोगे तो आपको टर्म्स का दिखने वाला है C of s and R of s if it is in Laplace domain. If it is in time domain तो आपको क्या दिखेगा? C of t and R of t. R of t stands for reference input, C of t stands for controlled output. I hope now things are very much clear to you. If there is any doubt you ask me. Now अभी डेफिनेशन सुनिए क्या बोलता है. ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एन LTI. व्हाट इज LTI? अभी इतना तो हमारा हाथ बैठ गया. व्हाट इज LTI? लीनियर टाइम इनवेरिएंट. इज डिफाइंड एज द रेशो. रेशो मतलब क्या करना है मुझे? डिवाइड करना है. रेशो है ना, रेशो मतलब डिवाइड. रेशो ऑफ व्हाट? रेशो ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट. लैपलास ट्रांसफॉर्म आउटपुट का लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना है. मतलब क्या? जो C of t है उसको मुझे C of s में कन्वर्ट करना पड़ेगा. टू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट. तो इनपुट क्या है जी? हमारा R of t है. तो R of t को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा R of s में. मतलब वो क्या कह रहा है? इट इज C of s डिवाइडेड बाय R of s. क्लियर? विथ ऑल इनिशियल कंडीशंस जीरो. विथ ऑल इनिशियल कंडीशंस जीरो. अज्यूमिंग इनिशियली रिलैक्स सिस्टम. इसका मतलब क्या है? ये चीज समझना जरूरी कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि इनिशियल कंडीशन जीरो. इसका सिंपल एग्जांपल अगर मैं देने की कोशिश करूँ आपको, अगर आपको याद होगा कि इफ आई टॉक अबाउट अ रेजिस्टर, कैन आई चार्ज अ रेजिस्टर? कभी सुना है आपने व्हाट इज अ चार्ज ऑन अ रेजिस्टर? आप बोलोगे सर सुबह सुबह क्या भांग पी के बैठे हो क्या? रेजिस्टर थोड़ी चार्ज होता है. यू कांट चार्ज अ रेजिस्टर सर. बट इफ आई टॉक अबाउट एन इंडक्टर, कैन यू स्टोर एन एनर्जी इन एन इंडक्टर? कैन यू चार्ज एन इंडक्टर? Can you store energy in a capacitor? Can you charge a capacitor? Yes, I can do it. Fine. Fine. ये पढ़ा था हम लोगों ने, अगर कोई याद होगा. E is equal to 1/2 Li square is the energy in an inductor. The same thing is applicable for this as well. You say half E is equal to half CV square. Fine. So you can actually charge an inductor. You can actually charge a capacitor. So don't you think like the way you have a phone battery? In order to charge your phone battery, you apply a potential to it. That is, we call it as a charging potential. And as a virtue of which your battery starts charging up. So your battery was initially 0%, then it starts charging dhire up to 10%, 20%, 40%, 50%. For example, now battery has been charged to 62%. कब से कब तक चार्ज किया आपने सुबह में फॉर एग्जांपल 8 AM को अपने बैटरी लगा दिया चार्जर पे, और by 9:30 for example your battery has been charged to 62%. Now
I as a faculty, I as a professor, I as a teacher come to your class at 9:30 a.m. and I want to perform something, an operation, a kind of activity on the battery. So over there, I make a very clear statement, which could be surprising to you, which could be an astonishing to you. Yes, my dear students, I will be assuming at 9:30 a.m. that the battery charge is 0%. Correct? द मोमेंट आई मेक दिस स्टेटमेंट, ऋतिक तो मुझे गाली देगा, बोले सर कुछ भी बात करते हो सर, मैं सुबह 8 बजे से बैठा हूँ, मैं 8 बजे से बैटरी चार्ज कर रहा हूँ और आप 9:30 बजे आते हो आराम से सेठ की तरह मुझे आके बोलते कि आई एम अज्यूमिंग 0%। बोले कि हम क्या घास काट रहे थे क्या हम लोग सुबह से लेके? क्यों ऐसा मैंने कहा, सुनिए ध्यान से इसको, अब ये समझना है हमको, व्हाई डू आई से सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट। अब मैंने आपको एक टर्म कहा था याद रखने के लिए, अगर आपको याद होगा तो आपको और इजी समझेगा कि व्हाई आई एम सेइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। मैं आपको दो चीज से बताने वाला हूं, डोंट वरी। इफ आई कम हियर, सिस्टम का ये वाला केस, ये हमारा नोट नंबर 1 है। मैंने कहा था आपको एक टर्म याद रखिए, ये मुझे आगे यूज आने वाला। ये थोड़ा नीचे आया, नीचे आया, यस स्टॉप। रीड दिस लाइन सर, रीड दिस लाइन्स। For linearity, important condition is that if we apply zero input, then output must be zero. Correct na? If we apply zero input, the output must be zero. तो my dear friend, अगर मैं आपको बोलता हूँ 9:30 AM को, सुनिए ध्यान से स्टोरी क्या हो रहा है। 9:30 AM को मैं जस्ट क्लास में एंटर हुआ हूँ, तो ऑब्वियसली आई रिक्वायर सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। करेक्ट ना? 8 बजे का लेक्चर था, यू ऑल हैव विटनेस्ड, आई हैव नॉट स्टार्टेड लेक्चर शार्प एट 8, फाइन, आई जॉइंड एट 8 नो डाउट, बट आई वाज लाइक ये फाइल ओपन कर रहा हूँ, वो फाइल ओपन कर रहा हूँ, पेन टैप को एडजस्ट कर रहा हूँ, कैमरा को एडजस्ट कर रहा हूँ, अपने आप को बराबर सेट करो कि लाइक वेदर आई एम लुकिंग प्रॉपरली और नॉट, लाइक आई रिक्वायर दैट टाइम। एंड एट अराउंड 8:10 और 8:14 आई स्टार्ट विद माय फर्स्ट वर्ड, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस सेशन। तब 8 बजे से लेके आप 8:14 तक आप क्या कर रहे थे? आई हैव गिवन अ जीरो इनपुट, but when I given a zero input, I am supposed to get zero output. It is as simple as that, as you studied over here. But am I getting zero, sir? No. What I am getting? I am getting what? 62%. Don't you think this is a violation? This is a violation for system being linear. और यहाँ पे आप खुशी खुशी आप क्या बोलते हो? For an LTI system. आपके वर्ड में लिखा है linear system. So don't you think in order to say a system is to be a linear, I should assume that the initial condition has to be zero, sir? Correct or not? Fine. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हम लोगों के माइंड में होता है व्हेन यू आस्क द प्रोफेसर्स ना, लाइक अदर प्रोफेसर्स के सर व्हाई एलटीआई सिस्टम के अंदर आप ऐसे बोलते हैं कंडीशन जीरो, दे डोंट गिव आंसर टू इट कि व्हाई इट इज सो। ठीक है, ये जब आप पढ़ते हो सिग्नल सिस्टम तो उसमें तो आपको क्लैरिटी मिलता है, अच्छा ओके दैट इज द रीजन वी अज्यूम सिस्टम, वी अज्यूम इनिशियल कंडीशन इज जीरो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ओके, नाउ अभी आपको मैं और एक चीज दिखाता हूँ। मैंने कहा था आपको मैं दो बात करने वाला हूँ। अब दूसरा बात सुनिए, अभी आप कोई भी सिस्टम होने दो, उसको अगर जब सॉल्व करता हूं ना, कोई भी सिस्टम को जब मैं सॉल्व करने वाला हूं, सर सॉल्व मतलब क्या कहना चाहते हो? अरे मेरे भाई ये सिस्टम है, इस सिस्टम को आप इनपुट दोगे, बोले बिल्कुल सही, तो जो भी आप इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा ना। तो ये जो आउटपुट है, द टोटल सोल्यूशन y ऑफ t, टोटल सोल्यूशन इज इक्वल टू जीरो इनपुट रिस्पॉन्स ZIR प्लस जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। इज इट क्लियर टू यू? क्या लिखा यहाँ पर मैंने? क्या आप रिपीट कर सकते हो ये फॉर्मूले को? टोटल सोल्यूशन इक्वल टू, बोलिए, टोटल सोल्यूशन इक्वल टू जीरो इनपुट रिस्पॉन्स प्लस जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। अब सवाल ये उठता है कि सर ये क्या लिखा है आपने, व्हाट इज ZIR व्हाट इज ZSR? जीरो इनपुट, क्या मीनिंग समझते हैं आपको इस पे से? जीरो इनपुट पे से मतलब यहाँ पे मैंने इनपुट दिया ही नहीं है भाई, मैंने आई हैव नॉट गिवन इनपुट सर, मींस इनपुट इज नॉट गिवन। So now you guys tell me, if I'm not giving input to a system, I should get output as zero. But what output I'm getting? What output I'm going to get? ZSR. Fine. अगर TS अगर मुझे निकालना है तो मैंने इनपुट तो जीरो दिया है, तो लीनियरिटी बोलता है अगर इनपुट जीरो
So TS has to be 0. But what is total solution? Total solution equal to ZSR. What is ZSR? ZSR is zero state response. मतलब जो भी सिस्टम का स्टेट होगा, जो भी सिस्टम का स्टेट होगा, फाइन, ओके, जो भी सिस्टम का स्टेट होगा, दैट डिफाइंस द स्टेट रिस्पॉन्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? स्टेट मतलब जैसे यहाँ पे आप जर्नी देख रहे हो, व्हाट इज जर्नी? कि 0% से लेके 62% तक आ गए, फिर धीरे 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 80% होगा, 90% होगा, लास्ट में कहोगे बैटरी फुल्ली चार्ज हो चुका है, 100% हो चुका है. So what is the state at 9:30? 62%. What is the state at 9:45? You will say it is 70%. What is the state at 9 o'clock? You said this 50% battery has been charged. तो ये state होता है. तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि आपने इनपुट कुछ भी नहीं दिया है, आपने इनपुट कुछ भी नहीं दिया है. सो व्हाट इज इनपुट नहीं दिया तो फिर क्या? इनपुट नहीं दिया मतलब यहाँ पे स्टेट तो होगा ना. अगर इनपुट आपने नहीं दिया है तो स्टेट तो एग्जिस्ट करेगा, स्टेट विल बी देयर. अंडरस्टूड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो स्टेट रिस्पॉन्स? मतलब यहाँ पे आपका स्टेट आपने जीरो अज्यूम किया है, मीन्स यहाँ पे आपका स्टेट जो है वो आपने जीरो बोला, द स्टेट इज जीरो. तो ऑब्वियसली स्टेट अगर जीरो तो आपको इनपुट देना पड़ेगा, यहाँ पे इनपुट विल बी देयर, इनपुट विल बी देयर. अंडरस्टूड सर? In case of zero input response, the input given is zero, but you have some state. What is the state? 50%, 62%, 70%. This is the meaning of state. And in case of zero state response, the state is zero. Means I am assuming initial conditions as zero, but I am having what? Input is there. Fine. तो linearity मुझे क्या बोलता है कि linearity का meaning ये है कि in linearity when you give zero input, when you give zero input, the solution has to be zero. Means ZSR आपको आना नहीं चाहिए. फाइन, ओके. अगर यहाँ पे आप बोलते हो और यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे the same thing was there. See, same thing is there. When you provide initial condition as zero, the output has to be zero. When you give initial zero input, output must be zero. That is the basic idea of linearity. So I hope you now have understood what is the meaning of initial conditions being zero. What is the meaning of that? Like, why do we say transfer function of an LTI system has to be first initial condition to be zero, and then after satisfaction of this condition, we say Laplace transform of output to Laplace transform of input. Is it clear to you, sir? क्या भी query है आपको? Sir, can you again explain zero state response? Okay, why not? ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम को हम लोगों ने इनपुट दिया x of t, ओके, और मुझे आउटपुट मिला y of t. So what is y of t? Y of t is the total solution of the system after application of an input. Fine. Total solution is always given in the format zero input response plus zero state response. जीरो इनपुट रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है, उसके नाम में लिखा गया है इनपुट इज जीरो, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स मींस x of t हैज टू बी जीरो. जीरो स्टेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? आई एक्सप्लेन यू स्टेट सर. अगर आपको याद होगा पहले ना, एक अराउंड 10 years ago, you might have noticed there used to be a PCO phone, public call office, correct? When you lift the receiver, वहां पे लिख कर आता था इंसर्ट कॉइन, करेक्ट? व्हेन यू प्लेस अ कॉइन ओवर देयर, वहां पे लिख के आता था डायल द नंबर. फाइन. थर्ड वहां पे आता था लिख के आफ्टर डायलिंग द नंबर जस्ट टू बी कनेक्ट, करेक्ट सर? फाइन. नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. व्हेन यू लिफ्ट द रिसीवर, you are providing an input. When you provide an input of lifting the receiver, what was the state, sir? Insert coin. Will the state change from insert coin to dial? No, not at all. Until unless you place a coin in that. जब तक आप coin नहीं डालोगे उसके अंदर, the state will be insert coin. सर वर्डिंग्स को समझिए, वर्डिंग से धीरे धीरे आपको पूरा समझने वाले. ये स्टेट है मेरा. Will the status of dial, will the state of dial will change to connect? क्या मेरा स्टेट जो डायल है वो कनेक्ट की तरफ जाने वाला है? नहीं होगा जब तक मैं एक्चुअल नंबर फिजिकली डायल नहीं करता. ओके, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस. सो स्टेट मतलब द स्टेट ऑफ द सिस्टम. द स्टेट ऑफ द सिस्टम विल प्रिवेल
until and unless I provide an input to it. अगर मैंने कॉइन ही नहीं डाला तो वो इंसर्ट कॉइन ही होगा वो, भले फिर वो रात के 12 बजे से अगर मैं हाथ में रिसीवर लेकर मैं खड़ा हूं, मैं I'm holding a receiver in my hand, I'm not placed a coin till morning 6 a.m. It will be insert coin itself. वो insert coin से डायल नहीं होगा ना, कनेक्ट होगा वो. That is the meaning of state. Understood? Now, तो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स का ये होता है कि अगर स्टेट को मैंने जीरो यहाँ पे मैं बोला स्टेट इज, यहाँ पे स्टेट इज जीरो, द ओनली थिंग इज गोइंग टू वर्क अपॉन ओनली अपॉन द इनपुट. तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है जहाँ पे आपने इनपुट को जीरो रखा है और पूरा सिस्टम आपका स्टेट के हिसाब से चल रहा है. सिंपल सर, इट इज जस्ट लाइक अ सुपरपोजिशन थ्योरम. लाइक यू फर्स्ट यू प्रोवाइड स्टेट वाला चीज पे आप आउटपुट निकालते हो. ZIR मतलब क्या होता है? इन केस ऑफ ZIR you get the output by means of state of the system, and in case of ZSR you get the output only on the application of input, assuming state is zero. समझा आपको इसका मीनिंग क्या होता है? Yes sir. इट इज सिंपली सुपरपोजिशन थ्योरम. जैसे एग्जांपल हमने किया था ना वहां पे कि सपोज ये मेरे पास में अगर सर्किट है और ये सर्किट में समझो दो पावर सप्लाई, एक पावर सप्लाई 5 वोल्ट का, दूसरा पावर सप्लाई 10 वोल्ट का है. तो पहले आप 5 वोल्ट लगाते हो, 10 को आप जीरो अज्यूम करते हो, फिर आप 10 को लगाते हो, 5 को जीरो अज्यूम करते हो. सेम थिंग मुझे करना है. एक बार मैं इनपुट को मैं जीरो अज्यूम करता हूं और खाली जो स्टेट है सिस्टम का उसके ऊपर काम करके दिखाता हूं मैं. सेकेंड टाइम में मैं स्टेट को जीरो करता हूं और जो इनपुट दिया उसको कंसिडर करने वाला हूं. दैट इज द रीजन आई एम हैविंग व्हाट ZIR प्लस ZSR, एंड दैट एंटायर गिव्स मी टोटल सोल्यूशन एज TS और कंप्लीट सोल्यूशन, जो भी आपको नाम बोले, TS बोलिए या कंप्लीट सोल्यूशन बोलिए, तो ZIR प्लस ZSR. तो LTI सिस्टम ये बोलता है, लीनियर सिस्टम, कि जब आप इनपुट जीरो देते हो, जैसे यहाँ पे आपने डेफिनेशन पढ़ा, इफ यू अप्लाई जीरो इनपुट देन आउटपुट मस्ट बी जीरो. ठीक है, मतलब अगर आपने इनपुट जीरो दिया है तो आपको स्टेट जीरो अज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट ZIR सर, अदरवाइज यू विल गेट ZIR. फाइन. अगर आपने इनपुट को जीरो दिया है तो यू शुड गेट सिंपल TS इक्वल टू जीरो. फाइन, यू शुड नॉट गेट ZIR के नहीं देखो बट स्टेट है ना, स्टेट की वजह से तो कुछ ना कुछ तो ऐसा नहीं होता है वहां पे, बिकॉज लिनियरिटी का प्रॉपर्टी यहाँ पे बोलता है इफ यू अप्लाई जीरो इनपुट आउटपुट मस्ट बी जीरो. फाइन, दैट वाज द मीनिंग ऑफ दैट. So transfer function of an LTI system is defined as the ratio of Laplace transform of output to Laplace transform of input with all initial conditions zero, assuming initially relaxed system. मैंने बहुत से प्रोफेसर लोगों को पूछा ये क्वेश्चन कि भाई इनिशियल कंडीशन जीरो, इसका रीजन क्या है? तो आई वाज लाइक हाँ वो ऐसी है, वो थियरी है, वो डेफिनेशन है, और मुझे इसका आंसर नहीं मिला. आई गॉन थ्रू वन ऑफ द वीडियो ऑन यूट्यूब yesterday itself, तब समझा ओ दैट इज द रीजन. तो दिस इज व्हाट माय लेवल ऑफ स्टडीज, कि मैं वो केवल पढ़ता कि भाई क्यों है ये, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. और वो चीज अगर मैंने पढ़ा है तो ऑब्वियसली आई हैव टू टेल यू स्टूडेंट्स लाइक व्हाई इट इज सो. So I want you to adopt that way of understanding the things. Don't take like a definition है, रट्टा मार ले हो गया. क्यों है वो? Understand the why it is, understand the insight, understand the difference, and understand the main intuition behind it. Like why you're saying it is zero? क्या रीजन है? वरना ऋतिक तो गाली मारेगा ना यार, मैं 8 बजे से बैठा है, मैं 1.5 घंटे के बाद में भाई आराम से मस्त आता खाना पीना खाकर बोलते कि ना अज्यूमिंग जीरो. तो क्या मैं बेवकूफ हूँ क्या? मैं क्या धूप में क्या बाल सुखा रहा था क्या मैं, जो ये बोल रहा है कि 60% आई एम अज्यूमिंग जीरो? इट शुड नॉट बी हैपन इन दैट वे. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज लिनियरिटी यहाँ पे फेल हो जाएगा आपका. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड सर. So I can say mathematically Laplace of output upon Laplace of input. So we have studied over here. C of t will become C of s, R of t will become R of s. So we say it is simply what C of s upon R of s. Is it clear to you, sir? पूरा definition आपको clear हो गया? Okay. But still, ऋतिक एक पॉइंट के लिए सही भी बोलता है कि यार वो बेचारा सुबह 8 बजे से बैठा है, कल रात को सोने को भी लेट हुआ होगा. इट इज कॉमन, इट इज मुंबई, वी जनरली स्लीप लेट, और वो सुबह जल्दी उठ के आंख मसल के बैठ गया है वो, और उसको तुम बोलते हो कि आई एम अज्यूमिंग जीरो. So yes, it is a drawback, no doubt. It is a major drawback. Like you're considering it is zero. So in order to avoid it, we move from this conventional approach of transfer function to modern approach. So this is that modern approach. आप लोग जो पढ़ रहे हो ना स्टेट स्पेस मॉडल, सेल्फ स्टडी आपको जो दिया गया है, दिस इज एक्चुअली द मॉडर्न अप्रोच. इन स्टेट स्पेस मॉडल यू विल अंडरस्टैंड कि
कि like how to derive a transfer function by considering state as well. Over there you will be considering initial conditions as well, because in case of evaluation of transfer function as per the conventional approach, you assume initial conditions is 0, which is actually bullshit. You should not do it. विकार अरे 8 बजे से आके बैठे हो, चार्ज कर रहे हो, उसको तुम बोलते हो 0, तो पूरे मेहनत को पानी फेर रहे हो इसके. नो, नॉट पॉसिबल. So in case of modern approach, we consider state as well. The state space model is a modern approach to evaluate transfer function. Understood, sir? ये अगर आप पढ़े होगे या अगर आप you have to make an article based on it, definitely you might have gone through this such kind of wordings. Kindly go through it, you will understand it. Okay, so now ये देखिए ध्यान से, ट्रांसफर फंक्शन Laplace of output upon Laplace of input. Sir, if I say input is impulse, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अगर मैं कहता हूं इनपुट इम्पल्स है, व्हाट इज लैप्लास ऑफ इम्पल्स? Yes. What is Laplace of Transfer impulse? function will be equal to CS. Exactly. Very nicely answered, sir. So Laplace transform of impulse response with all initial conditions 0. Transfer function can be defined as Laplace transform of impulse response with all initial conditions 0. So TF is equal to Laplace of impulse response with initial conditions equal to 0. Therefore, impulse response is equal to inverse Laplace of transfer function. समझा कुछ? Impulse response is equal to Laplace inverse. यहाँ पे डाल दीजिए ना L को, ये L यहाँ पे इधर था, you make it L go there, Laplace inverse of transfer function. अब देखिए आपका सिलेबस क्या बोलता है, impulse response. समझा बेटा मैंने क्यों पहले ट्रांसफर फंक्शन पढ़ाया आप लोगों को? जब तक आपको ट्रांसफर फंक्शन नहीं समझेगा, you won't be able to crack what is impulse response, because impulse response is actually transfer function. It is simple, sir. Fine. अंडरस्टूड. मतलब यहाँ पे आपको लैप्लास यूज होने वाला है. दैट इज द रीजन आई टॉट यू लैप्लास फर्स्ट. ओके, नाउ अभी एक चीज देखिए, एक काम करता हूं मैं आपको अभी एक्ट करके दिखाता हूं. आई प्लीज कम टू माय कैमरा सो दैट वी एबल टू सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आप मेरे कैमरे पे आ जाइए. ये एक ऑब्जेक्ट है, इट्स अ माउस व्हिच आई एम होल्डिंग इन माय हैंड. फाइन, इट इज स्टेबल, परफेक्ट, मस्त. उसके इसमें आराम से वो लहरा रहा है, घूम रहा है इसके हवा के हिसाब से, बिकॉज ऑफ एयर. नाउ बाय मीन्स ऑफ अ फिंगर आई गिव अ सिंपल पोक टू इट. POKE, पोक. जिस तरीके से मैं फेसबुक पे किसी को पोक करता हूं, या फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है, क्लासरूम में सब बच्चे बैठे हुए हैं, ऑल स्टूडेंट्स ऑल आर लिसनिंग टू द फैकल्टी, एंड आई कम इन बिटवीन फ्रॉम द बैक डोर and I poke a person like this. क्या करेगा आदमी? वो अरे कुछ भी धक्का को मार रहा है, and then he will remain silent. Yes or no, sir? Fine. अभी आप चीज देखिए, अभी आपको मैं 4 एग्जाम्पल दिखाता हूँ अलग अलग. एक लड़का है ईशान फॉर एग्जाम्पल, मैंने आया उसको पोक किया, ए मार खाएगा, धक्का मत मार. ऋतिक के पास में आया, उसको भी पोक किया, अब ए दू का फटका तेरे को, समझ रहा है क्या? तीसरे के पास में, उसको मैंने मारा, उसने उठा के मार ही दिया मेरे गाल के ऊपर. धक्का क्या मार रहा है? इसको आया, इसको पुश किया, ए धक्का क्या मार रहा है रे? डोंट यू थिंक द डिफरेंस ऑफ दिस 4 पीपल? इसने प्यार से बोला, इसने उठा के मार दिया एक गाल में डायरेक्ट, ये चिढ़ गया, इसने वार्निंग दिया. सर व्हाई इट इज सो? सब अलग अलग क्यों बिहेव किया सब लोगों ने? पोक तो सेम ही था, सेम फोर्स था, सेम ताकत थी, सेम पावर था, सेम आदमी था, बट व्हाई डिफरेंट नेचर ऑफ द पीपल? व्हाई इट इज सो? लाइक व्हाई इट हैज हैपेंड सो? मुझे अलग अलग रिस्पॉन्स क्यों मिला? सिस्टम का सेम मिलना चाहिए था ना. जब इनपुट सेम है तो मुझे ऐसा क्यों मिल रहा है? क्या कहोगे इसको आप? क्योंकि 4 सिस्टम अलग अलग. क्वेश्चंस है. यस, सुनिए, वेरी नाइस. बिकॉज ऑब्वियसली जैसे आमिर खान का डायलॉग है ना, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल. सर
आप कोई आदमी को बोलते, कोई आदमी प्यार से बात करेगा आपको, कोई आदमी आपको चिढ़ के बात करे, कोई आदमी आपसे मराठी में बात करेगा, कोई आदमी आपको तेलुगु में रिप्लाई करे, कोई आदमी आपको इंग्लिश में रिप्लाई करेगा, कोई आदमी आपको अरबी में रिप्लाई करेगा। डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिकॉज इट इज अ सिस्टम का खुद का ओन बिहेवियर, सिस्टम का खुद का रिस्पॉन्स, सिस्टम का खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक, ये बिहेवियर, ये नेचर आपको कैसे पता चलता है? जब उस आप आदमी को पोक करते हो। जब when you poke a person, when you give a hint to a person, when you click a person, you get a response of that person कि लाइक वो आदमी क्या नेचर है उसका, है ना। एक जोक याद आया मुझे, इट्स नॉट अ जोक, लाइक इट इज अ स्टोरी व्हिच आई एम गोइंग टू नरेट यू। अकबर बीरबल का कहानी है ये। तो you know that Birbal was a very clever person, and it was known to be like a very intellectual person. तो वो एक दरबार था अकबर बीरबल का, और दरबार के अंदर रजवाड़े में बोले कुछ लोग आ गए, एंड दे वर मल्टी स्किल, मल्टी टैलेंटेड, और हर आदमी अलग अलग लैंग्वेज बोल, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई अरबी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है। एंड उन लोगों ने बीरबल के सामने ये कंडीशन रखा कि देख हम लोग 5-6 लोग हैं, और तू हमारा ये डिटेक्ट कर कि व्हाट इज आवर मदर टंग, कि हमारी मदर टंग क्या है। बोला यार ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज है। अकबर वाज लाइक ये एक डिफिकल्ट चीज है, लाइक हाउ आई विल बी एबल टू डिटेक्ट व्हाट इज योर एक्चुअल मदर टंग, बिकॉज यू स्पीक सो फ्लुएंटली लैंग्वेजेस लाइक तेलुगु, मराठी, उर्दू, मलयालम एक्सेट्रा, तो आपकी मदर टंग क्या है, लाइक कि मैं कैसे डिटेक्ट करूंगा यार। तो फिर बोला ठीक है, एक काम करते हैं, हम ये 6 लोगों को, ये हमारे मेहमान हैं, इन लोगों को हम एक कमरे में सोने के लिए देते, लेट देम स्लीप, और उन लोग जाके अपने कमरे में सो जाते हैं। रात के टाइम पे, रात के 3, 3:30, 4 बजे के टाइम पे बीरबल चुपके से बैकडोर से एंट्री करता है, और वो आदमी को जाके पोक करता है। जैसे वो आदमी को पोक करता है, वो आदमी नींद में, ए मारूंगा तेरे को, हिज मदर टंग इज हिंदी। दूसरे को पोक किया, ए मारणार ना तुला मी, जास्त बोलायचं नाही इकडे, हिज मदर टंग इज मराठी। तो ये सिस्टम का खुद का नेचर, सिस्टम खुद का बिहेवियर है, बिकॉज सिस्टम बिहेव कब करता है? जब उसका पोक करते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वी मीन स्टोरी से कंक्लूजन निकलता है कि व्हेन यू पोक अ सिस्टम, यू कम टू नो द सिस्टम का बिहेवियर, कि व्हाट सिस्टम का मदर टंग क्या है, सिस्टम का खुद का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फाइन, ओके, दिस वाज द मेन आइडिया बिहाइंड दैट। सो इंपल्स रिस्पॉन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपल्स? इंपल्स मतलब क्या होता है? इंपल्स वो होता है कि व्हेन एट ओनली एट दैट इंस्टेंट t equal to 0 you're going to provide an input to it, करेक्ट ना? ओनली एट t equal to 0 पे आप सिस्टम को इनपुट दोगे आप। अब सुनिए, यहाँ पे मैं अभी आपको मैं सिस्टम की भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको थोड़ा तो आइडिया आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिए ध्यान से, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप इनपुट जो हो वो सिस्टम को कब देने वाले हो? Obviously sir, at t equal to 0, because that is the meaning of impulse. Only at t equal to 0 you're going to provide impulse as 1, and impulse response delta t. अभी 4 लोग का आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, ईशान था, ऋतिक था, है ना, फिर पूजन था, रेणुका थी, ऐसे 4 लोग थे। 4 लोगों को अलग अलग मैंने पोक किया। तो किसी ने चिल्लाया, किसी ने प्यार से बात किया, किसी ने उठा के थप्पड़ मार दिया, किसी ने बोला वार्निंग दिया। फाइन, तो हर आदमी का अपना अपना नेचर होता है। जैसे ये एग्जांपल आपको मैंने दिया। सेकंड एग्जांपल को मैंने कैसे दिया कि वो 6 लोगों को सुला देता है, बोलते के बारे में 3 बजे, और वो बराबर 3 बजे आके उनको पोक करता है। तो इसको जब पोक किया तो इसने मराठी में बात किया, ए तुला मारणाला मी, माझी झोप पण डिस्टर्ब करायची नाही। तो समझा कि हाँ इसका मदर टंग इज मराठी, हाँ इसका मदर टंग इज हिंदी। तो फ्रॉम दिस यू कैन से, अभी जैसी कोई भी सिस्टम, जैसे ये सिस्टम था, ठीक है, इसको आपने मैंने इनपुट दिया, इसको जब मैंने इनपुट दिया इंपल्स, तो ये सिस्टम थोड़ा ऑसिलेट होगा, फिर आपको शांत हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये अभी चीज है, इसको अगर मैंने इनपुट दिया है, देख ये कोई चिल ही नहीं रहा है, ये मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, बिकॉज सिस्टम का खुद का नेचर है, सिस्टम का खुद का बिहेवियर है। तो कोई सिस्टम होगा इंपल्स देने के बाद में वो फट से सेटल हो जाएगा, या हो सकता है वो कुछ देर के बाद में सेटल हो सकता है कुछ वो और देर के बाद में सेटल हो, या वो वही पॉइंट पे ही वो सेटल हो जाए। इट कैन बी एनीथिंग सर, वी कैन नॉट से, बिकॉज दिस इज सिस्टम का खुद का नेचर, सिस्टम खुद का बिहेवियर, सिस्टम का खुद का प्रॉपर्टी, सिस्टम खुद का एट्रीब्यूट। सो वी से impulse response. Now you can come to the presentation. So impulse response gives system behavior or system characteristics, hence known as free response. Why free response? Because
it depends upon the person how he behaves. He has that freedom कि उसको गाली देना है या प्यार से बोलना है या वार्न करना है या थप्पड़ उठा के मारना है, वो उसके हाथ में. इट इज फ्री रिस्पॉन्स. इट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स. इट इज सिस्टम रिस्पॉन्स. इट इज अ फोर्स फ्री रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम. अंडरस्टूड. एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको मैं देता हूं. सिंपल एग्जांपल ये है कि 1 वीक का टाइम दे दिया आप लोगों को मैंने, मंडे टू फ्राइडे, और मैं बोलता हूँ ये मंडे टू फ्राइडे के टाइम में आपको कभी भी कॉलेज में आना है. वर्डिंग सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. कभी भी आपको मंडे टू फ्राइडे के बीच में कॉलेज में आना है. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन दिस सिस्टम. मेरा वर्डिंग्स क्या था? कभी भी आपको कॉलेज में मंडे टू फ्राइडे के बीच में आना है. ये था मेरा इम्पल्स इनपुट. मैंने इनपुट देके छोड़ दिया, मैंने मेल डाल दिया. आई राइट अ मेल टू ऑल द स्टूडेंट्स इन बिटवीन मंडे टू फ्राइडे यू हैव टू कम वंस इन अ वीक. Fine. This is was impulse. Now it depends upon the system. कुछ स्टूडेंट्स मंडे को आएंगे, कुछ स्टूडेंट्स ट्यूसडे को आएंगे, कुछ वेडनेसडे को आएंगे, कुछ थर्सडे को आएंगे, कुछ फ्राइडे को आएंगे, कुछ आएंगे ही नहीं. बोले अरे यार छोड़ना, कौन जाता है, मैं बाहर हूँ, आई एम आउट ऑफ स्टेशन, आई एम इन नागपुर, आई एम इन नासिक, आई एम इन दिल्ली, आई एम इन कन्याकुमारी, आई डोंट वांट टू गो इटसेल्फ. ये कुछ भी बात करता है. इट डिपेंड्स. इट बिकॉज इट इज अ सिस्टम का खुद का बिहेवियर. इट इज सिस्टम का खुद का कैरेक्टरिस्टिक. इट इज सिस्टम का खुद का फ्री रिस्पॉन्स. सिस्टम का खुद का नेचुरल रिस्पॉन्स. Fine. It is a force free response because वहां पे ऐसा तो लिखा नहीं था मैंने compulsorily you have to come. If you don't come, you have to face the consequences. If you don't come, I will reduce your marks. It was force free response. अभी आप मुझे बताइए, if I give step response, step input, क्या कहोगे आप? If I give a step input, what is the difference between an impulse input and a step input? Impulse input सिर्फ t equal to 0 पे आप दे रहे थे. स्टेप इनपुट जो है वो आप t इक्वल टू 0 पे तो दोगे, बट ऑल्सो फॉर t ग्रेटर देन 0 एज वेल. डोंट यू थिंक इनपुट इज कंटिन्यूअसली अप्लाइड व्हेन यू गिव अ स्टेप इनपुट? यस और नो? इफ यू गिव अ स्टेप इनपुट, डोंट यू थिंक द इनपुट विल बी कंटिन्यूअसली अप्लाइड? डू यू थिंक सिस्टम विल बिहेव फ्रीली एज यू वांट? अभी तो वे रोज जाना है कॉलेज यार, मंडे भी जाना है, ट्यूसडे भी जाना है, वेडनेसडे भी जाना है, थर्सडे भी जाना है, फ्राइडे भी जाना है. तो डोंट यू थिंक यू ऑल विल कम एवरी डे फॉर 5 days? Definitely, because it is a force response. It is a system. It is a response given to you. Like you have to behave. You have to do it. It is like obligation. It is like a mandate given to you. So can we say if we apply step or a ramp or a parabola, then the response is called as a forced response? Understood the difference between these two? ये दोनों में क्या फर्क होता है? Can anybody explain what do you mean by an impulse response and what is a step, ramp और parabolic response? दो चीज है. एक step, एक impulse response होता है और दूसरा होता है step, parabola, ramp. ये दोनों में क्या फर्क है? Can anybody explain what he has understood in your own language? Yes. Come on. I have given various examples. 4 बच्चों का एग्जाम्पल दिया, फिर अकबर बिरबल वाला Sir, एग्जाम्पल in the first example, we are just giving the input at a specific time instant, and thus we are not forcing an input to the system throughout time. So only at that Correct. instant we'll get the output. But in the Okay. second instant, in step, ramp, and parabola, we are continuously giving an input, therefore forcing a response from the system. Exactly. Okay. Any other person can try? Sir, Any other person? Sir, in impulse response, we are just checking the input output of the system at t is equals to 0. But Correct. in other response such as ramp, parabola, and unit step or step, we are checking the response of the system respective to the input of the signal. Very nice. अभी को मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, मजा आने वाला है. सुनिए ध्यान से. डिप्लोमा स्टूडेंट्स, आई अपोलोजाइज के दैट आपके ऊपर बेस्ड एग्जांपल है ये है बच्चे एफई वाले. एफई बच्चे मतलब कौन से मालूम? जो 12वीं करके आए, 12वीं में से एफई में आए, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, एंड देन दे आर कमिंग इनटू सेकंड ऑफ इंजीनियरिंग. दे आर वेल सेटल्ड पीपल. जो थर्ड ईयर में आए, फिर फाइनल ईयर में चले जाएंगे, डीई.
सेकेंड ईयर में जो होता है ना, लेटरल एंट्री होती है। ये आते हैं हमारे डिप्लोमा के बच्चे, डिप्लोमा जस्ट पास हो गया, यहाँ पे एडमिशन होता है, दे आर completely न्यू टू दिस environment. Don't you think student number 1, student number 2, student number 3, again same thing is going to repeat, और सेम ग्राफ रिपीट होता है हम लोगों के लिए भी, सेम ग्राफ। ये पहला स्टूडेंट है, अबे क्या गंदा कॉलेज है यार, कुछ समझ ही नहीं रहा है, नजीब सर तो बकवास है यार, खुद भी पढ़ाते समझते ही नहीं है, वेरी बैड प्रोफेसर, डिप्लोमा वाज बेटर यार, आई वाज एंजॉयिंग ओवर देयर, शिट। दूसरा स्टूडेंट है, कुछ नहीं यार, मजा है बे, इजी तो है यार, मजा आ रहा है, सिंपल है, करेक्ट। थर्ड स्टूडेंट, हाँ ठीक है यार, बट है यार, डिफिकल्ट है यार, नजीब सर तो बकवास है यार, सही बोल रहा है तो। डोंट यू थिंक दिस इज सिस्टम का खुद का रिस्पॉन्स? रेड वाला फट से सेटल हो गया, ग्रीन वाला सेटल ही नहीं हो पा रहा है, उसको अभी भी हर जगह प्रॉब्लम लग रहा है, ब्लैक वाला है प्रॉब्लम्स था, थोड़ा समझ लिया, ओके फाइन। So these all are like depending upon the system. These all are like system का खुद का जैसे। Now चलिए अभी हम लोग ग्रीन का एग्जांपल लेते हैं। इसके बाद में क्या? What about this? बंदा मजा कर रहा है, he is enjoying because he has achieved that steady state. अब इसको अगर मैं पूछता हूँ, कहाँ पे पूछा मालूम? उसको मैंने थर्ड ईयर मैंने पूछा, ask that person in third year कि बेटा नाउ आर यू एंजॉयिंग? यस सर, मजा आ रहा है सर। सर मैंने ई यंत्र में पार्टिसिपेट किया, आई गॉट सेकंड प्राइज सर। सर आई पार्टिसिपेट इन ऑक्यूलस, सर आई गॉट फर्स्ट प्राइज सर। सर आई टोक इन स्कोप, मैंने स्कोप में वीएलएसआई लिया सर, स्कोप में ना मुझे बहुत अच्छा, मुझे मेरे बेनिफिट हुआ सर। सर मैंने है ना सर, मैंने मिनी प्रोजेक्ट के अंदर है ना मैंने ये बनाया था और मुझे पोस्टर प्रेजेंटेशन में कोई ना सर मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला। बोले यार फिर तो यहाँ पे तो क्यों गाली दे रहा था, मजा नहीं आ रहा है, ऐसा है वैसा है। सर ट्रांजिएंट सर, ट्रांजिएंट स्टेट, सेटल होने टाइम लगता है ना सर, अंडरस्टूड। तो ट्रांजिएंट स्टेट डिपेंड्स अपॉन दी सिस्टम का खुद का नेचर, सिस्टम का खुद का बिहेवियर, सिस्टम का खुद का रिस्पॉन्स, दैट व्हाट वी कॉल एज ट्रांजिएंट स्टेट। कुछ सिस्टम फट से स्टेबल होते, कुछ सिस्टम देर से स्टेबल होते, कुछ सिस्टम बहुत देर के बाद में स्टेबल होते, बट डेफिनेटली स्टेबिलिटी विल कम एट सर्टेन पॉइंट। मींस अगर मैं सिस्टम का रिस्पॉन्स की बात करता हूं, एट टी इक्वल टू इंफिनिटी आपको एस एस ही मिलेगा डेफिनेटली। व्हाट इज एस एस? स्टेडी स्टेट। एट टी इक्वल टू इंफिनिटी यू विल गेट स्टेडी स्टेट, इट इज सिंपल, करेक्ट ना? ठीक है भाई, कोविड चल रहा है, मार्च 2020 से चालू हो गया, एक साल हो गया, चल 2022 तक चलते गया, बट डू यू थिंक दिस कोविड विल कंटिन्यू टिल 2030? नॉट एट ऑल सर, कभी ना कभी तो स्टेडी स्टेट आ ही जाएगा ना, कभी ना कभी तो स्कूल कॉलेज शुरू हो ही जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू टिल लाइफ टाइम। So what we say like transients are there, but steady state you will achieve, and transient depends upon the system का nature। अगर कोरोना अगर हल्का फुल्का अगर होता तो हो सकता था कि दिसंबर 20 तक एवरीथिंग वुड बी नॉर्मलाइज, जनवरी 2021 चलो एवरीथिंग इज वेल, नॉर्मल, खत्म हो गया, स्कूल भी चालू है, कॉलेज भी चालू हो गया, ऑफिस चालू, सब कुछ चालू हो गया, बट ओके लाइक इट वी से कि दिस कोविड इज लाइक दिस ग्रीन वाला पर्सन, जैसे ये ग्रीन वाला आदमी है कि अभी भी मतलब है ठीक है, चल रहा है, तकलीफ दे रहा है थोड़ा हमको धीरे धीरे, डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम बिहेवियर, डिपेंड्स अपॉन सिस्टम नेचर। इसके पहले देयर वाज स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, क्या क्या था उसके पहले भी, बट इट वाज ओके, लाइक इट वाज लाइक रेड कलर, इट वाज लाइक ब्लू कलर, इट वाज लाइक ब्लैक कलर, दोस ऑल डिजीजेस वर। कोविड थोड़ा हमको ग्रीन कलर की तरह लग रहा है, मगर इसके थोड़ा ही चल रहा है, बट इट वोंट गो अप टू 2030, आफ्टर दैट यू विल गेट स्टेडी स्टेट। इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम का नेचर, सिस्टम का रिस्पॉन्स, system behavior. This was the meaning of impulse response and a step or a ramp or parabolic input. Guys, एक क्वेश्चन पूछना है मुझे अभी आपको, देखते हैं आपको कितना समझा। सर मैं आउटपुट अगर मुझे लेना है, जैसे यहाँ पे आपने देखा, इट इज अ वेरी राइट क्वेश्चन, राइट टाइम टू आस्क। कोई भी सिस्टम का रिस्पॉन्स, मैं यहाँ पे एसआर लिख रहा हूँ, एसआर मतलब व्हाट सर? सिस्टम रिस्पॉन्स। सिस्टम रिस्पॉन्स, सिस्टम रिस्पॉन्स हैज टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, यस और नो सर, जहाँ पे बच्चा खलबली होना शुरू करता है, अरे यार कैसे करूँ, क्या हो, नहीं समझ रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, ऐसा है वैसा है, इसका मतलब ट्रांजिएंट। और फिर खुशियों वाला टाइम, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स।
स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। जहाँ पे बोलता नहीं सर मजा आ रहा है सर, सेटल हो गया हमें, वहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिला, सेकंड प्राइज मिला, इधर फर्स्ट थर्ड प्राइज लिया, ये किया वो किया, रेडी स्टेडी स्टेट, इज एंजॉइंग नाउ। तो आई विल बी गेटिंग ट्रांजिएंट एज वेल एज स्टेडी स्टेट। अभी अगर मुझे ये पूरा सोल्यूशन अगर मुझे चाहिए, सुनिए ध्यान से क्या क्वेश्चन आपका आता है, पूरा अगर मुझे चाहिए रिस्पॉन्स, तो शुड आई गिव इम्पल्स और शुड आई गिव स्टेप रैम? तो एक साथ याद आने वाला है, पूरा खिचड़ी है, स्टेप रैम पैराबोला, ये वाला दो के ये वाला दो, फर्स्ट और सेकंड, व्हाट शुड आई गिव इफ आई वांट बोथ ट्रांजिएंट एज वेल एज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स? व्हाट शुड आई गिव? Second one, व्हाई मैडम, व्हाई सेकंड वाला? because नहीं, दोनों पे भी आएगा। दोनों पे भी आएगा, मतलब इम्पल्स भी देना पड़ेगा कि खाली स्टेप देने का? मुझे एक सेकंड, आई रिपीट द क्वेश्चन फॉर यू, डोंट वरी। आई वांट बोथ transient as well as steady state response, so what should I give? Should I give should I give impulse input or should I give either of this, step ramp या parabola? कौन सा देना पसंद करूं मैं अगर मुझे दोनों रिस्पॉन्स प्राप्त करना है तो? I think now the question सर is clear. इम्पल्स। Why impulse sir? सर अभी हमारा ये एग्जांपल ले लो, अभी हमें थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है, आगे जाके हम लोग को थोड़ा मतलब सेटल हो जाएंगे, पर ये अभी जो हम कंडीशन फेस कर रहे हैं, अगर ये सेम कंडीशन आगे थर्ड ईयर फाइनल ईयर में भी मिलता है क्या, तो हम लोग स्टेडी स्टेट में पहुंचेंगे ही नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैं आप ही का एग्जांपल आपको बताता हूँ सर। यू आर इन सेकेंड ईयर, करेक्ट? एक साल के बाद में यू विल बी इन थर्ड ईयर, 2 साल के बाद में यू विल बी इन फाइनल ईयर। डोंट यू थिंक एज टाइम एडवांसेस इनपुट ऑल्सो एडवांसेस? क्या ऐसा है कि कॉलेज सिर्फ एक दिन का था? कॉलेज तो जैसे जैसे टाइम बढ़ना शुरू होगा वैसे वैसे इनपुट बढ़ना शुरू होगा। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इनपुट इज ओनली अवेलेबल एट t इक्वल टू 0। इनपुट आया, उंगली किया, चला गया। अभी सिस्टम गाली देते बैठा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कुत्ता है, एक कुत्ता सो रहा है, आपने पत्थर उठाया, कुत्ते को मारा और अब चले गए। कुत्ता आपके ऊपर भौंकना शुरू किया और फिर भौंकने के बाद में 5, 10, 15, 20 सेकंड के बाद में कुत्ता सोने वाला है। क्या यार, क्या कुत्ता पत्थर मार के चला गया? आपने पत्थर कब मारा? ओनली एट t इक्वल टू 0। आर यू कंटिन्यूसली स्टेपिंग स्टोन्स टू दैट डॉग? नो, नॉट एट ऑल। सो इन केस ऑफ इम्पल्स आपको स्टेडी स्टेट नहीं मिलता है। समझा मेरा वर्डिंग्स? In case of impulse, you don't get steady state response at all, because in case of steady state, you need to give continuous input. Correct ना? अगर मैं आपको आया बोल के चला गया, जेनिल देखो ये काम करना है, आई एम वेंट अवे, तो बोलेगा अभी कब आएगा, कब देखेगा, कब चेक करेगा? छोड़ना यार, मम्मी भूख लग रहा है, खाने को दे दो। But I'm continuously watching you. Janil, you turn on your camera, you turn on your microphone. I'm watching you continuously. Definitely बोलते ना, झक मार के करना ही पड़ता है। एक अपने ऊपर वो शनि लगा हुआ है, अपने ऊपर वो बेताल अपने पीछे लगा हुआ है, लेकिन we have to do it. So I mean to say, in case of impulse, you will only get transient because steady state is 0, sir. See, steady state यहाँ पे मिला आपको. In case of impulse, you are getting steady state. But what is the magnitude? What is the value of steady state? It is 0. So do you say 0 steady state is useful for me? No. But if I talk about step, take the example, sir. आपको और clarity मिलेगा. Don't worry. If I talk about step, क्या होता है step के अंदर? ये इनपुट है, कंटिन्यूसली आ रहा है ना? आप देखिए डिप्लोमा वाले बच्चे का एग्जाम्पल। अभी क्या गंदा कॉलेज है, समझ ही नहीं आ रहा है, क्या डिफिकल्ट हो रहा है, करते करते लास्ट में स्टेडी स्टेट अचीव्ड। सो कैन आई से till here this was his transient time and this was his steady state. Is steady state value existing? Yes, this is the steady state value. I am getting a non-zero value. But here, what is the steady state value? It is 0, sir, because it is impulse.
So can I say in case of impulse, steady state value is 0, but in case of step, ramp, parabola, steady state value is non-zero. समझा क्या अभी? This can be a Viva question. Impulse response will only give you transient response. Yes or no? Yes, impulse response will only give me transient response, but because in case of impulse response, steady state value is 0. आपको steady state नहीं मिलने वाला है, steady state value will be 0. That is the reason impulse response will only give you transient response. Then question arises, जो steady state मिल ही नहीं रहा है आपको, तो फिर impulse क्यों देते हो? मैं impulse इसलिए देता हूं कि मुझे सिस्टम का फितरत देखना है, मुझे सिस्टम का नेचर देखना है कि वो कैसे बिहेव करता है, कि वो मुझे प्यार से बोलता है, गाली देता है, थप्पड़ मारता है, कि खाली वार्न करता है. That is the reason I give impulse, so that I will come to know whether he is following this red color वाला curve या blue color वाला curve या green color वाला curve, so that I can manipulate that system in such a way so that I achieve steady state as early as possible. Understood? Why do I give impulse first? And then why do I provide step ramp parabola? Step ramp parabola में आपको transient तो मिलेगा ही, जैसे यहाँ पे आपको मिल रहा है green color oscillations. You can see this all oscillations are because of transient. खलबली मच गया यहाँ पे. एक खलबली को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट. और खलबली के बाद मुझे संतुष्टि जो मिलने वाला, जो आराम मिलने वाला है, उसको सुकून मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. So we say system response is transient plus steady state. Is it clear to you? समझेगा आपको धीरे धीरे when we take an example based on it. I hope, is it clear to you now? Or still there is any confusion? So when we give a step response or a ramp response, then we would only desire the steady state response of the system and not that transient response. मैंने क्या कहा, जब आप स्टेप रैम्प पैराबोला देते हो, आपको ट्रांजिएंट भी मिलेगा और आपको स्टेडी स्टेट नॉन जीरो आता है. द मेन इंटेंशन, the main desired what I want is steady state. That what is meant my desire is. But if you only want to check सिस्टम का खुद का नेचर, खुद का रिस्पॉन्स, खुद का बिहेवियर, तो सिर्फ आप इम्पल्स ही दीजिए, बिकॉज आपका स्टेडी स्टेट वैल्यू विल बी जीरो. योर स्टेडी स्टेट वैल्यू विल बी जीरो व्हेन यू प्रोवाइड इम्पल्स, राइट? When you provide impulse, you will only get transient because steady state value will be zero. To check system का free response, natural response, force-free response, you only give impulse, because when you give step, ramp or parabola, that is a forced response, and in forced response you will get both transient as well as steady state. Okay, so understood. Thank you. Okay, very good, beta. Fine. Any doubt is there, you can ask me. So we have seen what is a transfer function. The transfer function ka standard form is like this. So you have k as a coefficient coming outside, then you have like 1 plus st1, 1 plus st2, s raised to n. ये standard form है. ये कैसे है, क्या है, बाद में समझेगा when you take an example. Don't worry. We have example, n number of examples are there with us. So k is like system gain. It is a gain at s equal to 0. This n is called as type. If n is 1, we say type 1 system. If n is 2, we say type 2 system. If n is 3, we say type 3 system. N is 4, we say type 4 system, and so on. It is a number of poles at origin. We have seen that carefully in the previous lectures. The denominator gives me poles and numerator gives me zeros of a transfer function. Fine. And T1, T2, T8, TB, these all are T system parameters, wherein T1, T2, T3 are the zeros, and TA, TB, TC will be the poles of the system. What is the order? The order is total number of poles in S plane. So जो भी यहाँ पे order होगा, like with n plus 1 plus 1, तो n plus 2 will be the order of the system, and so on. अब ये question आता है, find order, type and system gain. तो चलो कोई मुझे बता सकता है इसका order कितना होगा? What is the order of the system? What is the type of the system? What system gain of the system? Can you do it directly? No. First of all, we need to convert in this format. Format क्या बोलते हैं? 1 plus st1 होना चाहिए. यहाँ पे कैसा लिखा है? s plus 5. तो क्या करना पड़ेगा मुझे? तो 10 लिखा मैंने, 5 को बाहर ले लिया, तो 5 का स्क्वायर विल बी 25. तो अंदर क्या बचेगा? 1 plus s upon 5. यहाँ पे s क्यूब रखेंगे हम लोग. यहाँ पे s plus 2 है, तो 2 को बाहर लीजिए,
2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एस बाई टू। फाइन, 1 प्लस एस बाई टू का स्क्वायर 2 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा 10 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एस बाई 10। नाउ डोंट यू थिंक दिस इज नाउ प्योरली इन द टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। आपको जैसा ना, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोला जाता है, इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट भी बोला जाता है। डोंट यू थिंक नाउ इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म? सो यू हैव गॉट दिस रिजल्ट नाउ, करेक्ट? नाउ यू कंपेयर what is 25/4, so you say 20/4 is equal to k, right? What is n? What is n here? What is n? So you say, sir, n is 3 here. It is type, this order is, sorry, the type is 3, it is a type 3 system. What is the order? 3 plus 2 plus 1. 3 plus 2 is 5, 5 plus 1 is 6. So we say order is 6. Type 3, order 6. Time constant form 25/4. अब एक शॉर्टकट आपको दिखाता हूं मैं। शॉर्टकट क्या बोलता है? Why do you want to go for time constant form? Don't you think it is difficult? It is time consuming, tedious method. Directly करिए ना। 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, order आ गया। Type directly 3. Now we want to compute what? The system gain. System gain क्या बोलता है? शॉर्टकट क्या है? Gain at s equal to 0. तो जहां जहां s वहां वहां 0 रखिए, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 का स्क्वायर, व्हाट इज 5 स्क्वायर 25, फाइन 25 इंटू 10 आने वाला है। डिनोमिनेटर में जैसे ही आप यहाँ पे 0 करते हो, कहाँ पे s क्यूब में, डोंट यू थिंक 0 क्यूब विल गिव यू 0 एंड 10/0 विल कम आउट टू बी इन्फिनिटिव? तो जो टर्म 0 करता है ये s क्यूब, इसको आप इग्नोर करिए शॉर्टकट में, यू इग्नोर दिस s क्यूब। नाउ व्हाट यू हैव, 0 plus 2 square is what, 4, and 4 into 10, and when you try to solve it, 10 will get cancelled, so you have 25 divided by 4, and that matches with your solution. Shortcut is put s equal to 0 and ignore poles at origin. This is how you can compute things in shortcut. Write the things in your notebook properly. वैसे यहाँ पे भी लिख कर रखा है मैंने, put s equal to 0, ignore pole at origin. So I hope you will understand this. Is it okay? समझा कैसे करना है? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ही आ सकता है आपको ऐसा। फाइन, अच्छा, अभी हम लोग ने कल जो डिस्कस किया ना, वो सेम चीज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम लोग फटाफट। अभी हम लोग फास्ट करने काम करने अपने को। एफ ऑफ एस इक्वल टू 1/s प्लस ए। पोल किधर है? फिर पोल के लिए क्या करना पड़ता है? डिनोमिनेटर को 0 इक्वेट करना पड़ता है। तो व्हाट आई गेट, s प्लस ए इक्वल टू 0, s इक्वल टू माइनस ए। आई पुट अ क्रॉस हियर, फाइन। When I put a cross over here, and when I try to solve it, like f of t, what will be f of t? E raised to minus at. सही है? E raised to minus at का आंसर क्या होगा? This will be the nature of the graph. So don't you think this is a bounded graph, stable graph, bounded graph, stable graph? 1/a अगर यहाँ पे आप करते हो t as 1/a, तो a will get cancel and you will be left with what? E raised to minus of 1. That value comes out to be 0.367. अगर मैं कहता हूँ 1/5a, 1/5 आपको क्या मिलेगा? a will get cancelled, you will be left with what? e raised to minus 1/5. that will give you what? 0.00067. किया था हम लोगों ने, अगर याद होगा तो आप लोगों को, करेक्ट ना? सिंपल सर। दिस इज t, right? This is 0. At 0, what is the value? 1. Correct, na? E raised to 0 is equal to 1. What is the value at 1/a for e raised to minus at when t is 1/a? So e raised to minus a into 1/a. So a will get cancelled. So you are left with only what? E raised to minus of 1. What is the value of e raised to minus 1? 2.71. raised to minus 1, that is the value of e ना. what is e? 2.71. इसका वैल्यू कितना आता है? तो 0.367. you will get something over here, 0.367. ये आपका है 0.367. this is this value, 0.367, ये वाला point. if I take 1/5a, fine, what is the value?
e raised to minus of a into 1 by 5a. a will get cancel. क्या बचेगा हमारे हाथ में? e raised to minus of 1 by 5. Fine. What is the value of e raised to minus 1 by 5? 0 point check करिए, 0.00067 something. Fine. कि somewhere इधर किधर आपको वैल्यू आने वाला है. Okay. And when you try to join these points, then you have this kind of graph. Okay. So don't you think at 1 by 5 इसके बाद में क्या वैल्यू आने वाला है? Anyways at 1 by 5 you have got what? 0.0067. So obviously after 1 by 5, okay, fine. Don't you think you will get a very small value? एक करके देखिए सर. Try to solve this. पहले आप निकालिए e raised to, एक सेकंड ना, हम लोगों ने मिस्टेक किया यहाँ पे. इट इज नॉट 1 by 5, इट इज 5 by a. हाँ सर. 5 by a है ना. It has to be 5 by a. I'll do this correction. It has to be 5 by a. Fine. So we were discussing about this, right? So what you got answer of e raised to minus 5? क्या आंसर आया?
Have you computed the value for e raised to minus 5? Yes, sir. 0.0067 e raised to minus 5. E 0.0067. Okay, तो दो जीरो है ना? हाँ सर, 2 0. Okay, 0.0067. So you have got 1 by a as 0.36 and 5 by a का आपको आंसर आया है 0.0067. This is the value for 5 by. Kindly make a note of this, especially EXTC students. ETRS में हम लोग डिस्कस किया था हम लोगों ने प्रैक्टिकल के टाइम पे ये 0.0067. So don't you think when I move forward like 6 by a, 7 by a, I will get value even less than that. That is the reason we always consider the transient only exists till TS, till 5 by a, that is transient response. और उसके बाद में हम लोग assume करते हैं कि the system will have achieved steady state response. So we assume transient is only up to 5 by a because at 5 by a what value you get 0.0067. Fine, and after that you're getting 0. Obviously, so we say the transient is only existing or only panning till 5 by a. Okay, because already you are given what impulse input. Impulse input से आपको transient ही मिलने वाले, steady state में 0 होने वाले. Steady state 0 किधर हो रहा है? तो steady state 0 is happening after 5 by a. So that is the reason I say transient is only panning from 0 up to 5 by a. Okay, kindly make a note of it. Fine. So that is what I written 0.367. So यहाँ पे क्या चीज हमको समझ रहा है कि when I say minus a, when it is minus a, when the pole is on the left of the S plane, at that time you will be getting exponential decay. That is first inference. When it is on the left side, real axis, left side, real axis, left side, you get exponential decay. And the value of the pole decides the rate of the decay. Value of the pole decides the rate of the decay. That is second thing. The value of the pole will decide the rate of the decay. And first point क्या देखा हम लोगों ने कि that if it is on the real axis left, then it indicates exponential decay. Okay. So we say response consists only exponential term. If response consists of only exponential term, then definitely will be having what? A real axis pole. Exponential power gives real part of the pole. Kindly make a note of this. If response comprises of exponential, then it is a real axis pole. If it has the real part of the pole, then we say it is going to give us what? Exponential power. Okay, so real exponential power will give you the real part of the pole, and it is simple pole. Why? Because only one pole is there, we call it simple pole. Okay. What if we have 1 upon s minus a? जैसे यहाँ पे आपको क्या था? S plus a था. यहाँ पे अगर suppose अगर मैं कहता हूँ s minus a है, same thing is going to adopt now. S minus a equal to 0, s equal to a. Now the pole is on the right side. The right side में अगर आ गया तो system will be unbounded, unstable, like the way we have seen in the yesterday session, है ना? E raised to at. So again same thing. If the response comprises of exponential term, then the real axis pole, the exponential power will give you real part of the pole. Fine. अगर आपका pole left side में है तो decay होगा, right में रहा तो increase होगा. And A will decide, the value of the pole will decide the rate of increase or rate of decrease, whether it is stable or it is unstable. Okay, understood one and first and second point. Okay, now let's come to this. For example, suppose if I'm having like 1 upon, इसको हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं. Let's come to here now. 2 upon s square plus 4. 2 upon s square plus 4. So s square plus 4 equal to 0. S equal to plus or minus 2j. You mark a cross here, you mark a cross here, because obviously vertical axis is the imaginary axis. You say plus of 2j, minus of 2j. So this is like a non-repeated pole, because they are not repeating. No? It is non-repeated pole on the imaginary axis. And this gives us sine of 2t. Correct? Na? Omega upon s square plus omega square. So 2 ka square is 4. It gives us the inverse Laplace of sine 2t. Inverse Laplace as sine 2t. So don't you say when you have a pole purely on the imaginary axis in this conjugate format, that gives you pure oscillations. It is marginally stable or critically stable. If response consists of only sine or cos term, then you have only imaginary axis.
So sine function or cos function will only give you imaginary part location. Exponential will give you real part location. Exponential will give us real part location and sine and cos will give us imaginary part location. अभी उल्टा बोलने का, अगर रियल एक्सिस रहा तो एक्सपोनेंट टर्म आएगा, इमेजिनरी पार्ट रहा तो साइन या कॉस आएगा. So this gives us marginally stable. Now sir, you come over here. 1 upon s square plus 2s plus 2, 1 upon s plus 1 the whole square plus 1. मैं यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर. कैसे करना है इसको, व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है इसका, कैसे करोगे इसको, एस स्क्वायर प्लस ये प्लस 1 कैसे हुआ, ये लास्ट टर्म कैसे मिलता है हम लोग को, इसका फॉर्मूला है लास्ट टर्म A plus B bracket. हाफ टाइम्स, क्या बोला आपने, रिपीट करो मैम. What is the formula in order to get the last term? It is half the middle term का square ना, देखते हैं हम लोग आगे चल के. Try work on it. I want you to work on it. Fine. So it is what, plus 1. So s plus 1 का square plus 1. So now you try to solve this. S square plus 2s plus 2 equal to 0. S equal to minus 1 plus or minus j, right? S equal to minus 1 plus or minus j. So what you get, e raised to minus t. E raised to minus t क्यों आया ये, shifting theorem, e raised to minus t, and it is sin t. So you get what, minus 1 plus j minus j. So you put a cross here, you put a cross here. अब देखिए ये ऐसा पोल है जहां पे रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है. तो रियल पार्ट अगर रहा तो यू गेट e रेज टू माइनस टी, और इमेजिनरी पार्ट रहा तो यू गेट sin t. नाउ वैल्यू ऑफ द पोल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रियल पार्ट, -1. दैट इज द रीजन यू गॉट व्हाट, -1. व्हाट इज द वैल्यू ओवर हियर, j into 1, यहाँ पे क्या लिखा आपने, sin into 1t, frequency is 1. Fine, easy, clear to you. So when response consists of exponent plus sine या cos term, then you get complex conjugate. Exponent part will decide real axis and sine cos will decide your imaginary axis. So you get such kind of graph. And e raised to minus t sin t का nature will be like this. E raised to minus t sin t. Again, it is a bounded and a stable system. Is it clear to you? समझा आपको कैसे होता है. एक शॉर्टकट और एक याद रखिए, अगर समझो आपको कोई बताता है कि s is -1 plus or minus j, एंड ये यूज करके आपको डायरेक्टली ये निकालना है. दिस इज द फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला, s स्क्वायर minus 2as plus a square plus b square. What is a here? A is what? -1. So what you get answer? S square minus 2 into -1. So -1 into -2 is what? +2. So plus 2s plus. What is a? -1. -1 का square is what? 1. What is b? b क्या है यहाँ पे 1 है, j into 1 b. b square is what? Again 1. So 1 plus 1 is 2. So you get what? S square plus 2s plus 2. This is the shortcut formula in order to compute directly. ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे आने वाला है. ओके, अब ये वाला देखिए आप, अगर ऐसा क्वेश्चन हमको आता है लाइक s minus 1 square plus 1, लाइक s square minus 2s plus 2, अगेन कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके इसको मैंने ऐसा लिखा, s minus 1 square plus 1. So s square minus 2s plus 2 equal to 0. If you try to solve this, what you will get, plus 1 plus or minus j. क्या होगा इसका बताइए अभी आप, what will be the solution. यहाँ पे वैल्यू कितना है a का, what is the value of a, 1. What is the value of b, 1. So e raised to plus t into sin 1t. Yes or no? E raised to plus t into sin of 1t. Correct sir? देखिए होने वाला e raised to plus t sin of 1t, and you get this kind of thing. We say this as an unbounded or unstable system. Okay. Now f of s is what? 2 upon s square plus 4. इसको कैसे करोगे? s square plus 4 equal to 0, s equal to plus minus 2j. So you get a non-repeated pole. You call this as a marginally stable. देखा हम लोगों ने. अच्छा अगर ऐसे आते तो कैसे करोगे इसको, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो s square plus 4 the whole square equal to 0. So s square plus 4 into s square plus 4 equal to 0, because square है ना, यहाँ पे multiplying twice.
तो s square equal to -4, s square equal to -4, s equal to plus or minus j2, s equal to plus minus j2. तो ये तो on there will be 4 pole, like 2 pole here, 2 pole here. So we call this as a repeated pole. And now again in homework to you, I want you to find the inverse Laplace of this in the form of f of t and then plot that graph. वो ग्राफ प्लॉट करने के बाद में you will get a unstable case. You will get a unstable case. So we have seen so far total 6 types. तो अब मुझे अब ये बताइए स्टेबल किधर आया, मार्जिनली स्टेबल कहाँ आया और अनस्टेबल केस किधर किधर आ रहा है. वंस अगेन बताइए फटाफट, काउंट करिए. पहले काउंट करते हम लोग स्टेबल. स्टेबल किधर किधर आ रहा है, पोल लेफ्ट में है तो है ना, पोल लेफ्ट में रहा सिस्टम इज स्टेबल, पोल राइट में रहा अनस्टेबल, फिर पोल लेफ्ट में रहा तो सिस्टम इज स्टेबल, अगर पोल राइट में चला गया तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल. अगर पोल इमेजिनरी पे आता है, प्योरली और इमेजिनरी, वी से इट इज मार्जिनली स्टेबल और क्रिटिकली स्टेबल. ये कल पूरा हम बहुत डिटेलिंग में कल हम लोगों ने देखा था, इसलिए आपको वर्ड इतना वी डोंट वांट टू गेट इनटू व्हाई इट इज नोन एज मार्जिनली क्रिटिकल, ये पूरा समझ जाता कल हम लोगों को. फिर यू हैव s स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फाइन. तो यू हैव नाउ रिपीटेड पोल्स. नाउ वी आर हैविंग व्हाट सर, रिपीटेड पोल्स. तो रिपीटेड पोल्स अगर है इसको क्या कहोगे, दिस इज एन अनस्टेबल केस. तो अनस्टेबल के लिए 2 चीज देखा हम लोगों ने, पोल राइट पे होना चाहिए या फिर रिपीटेड होना चाहिए ऑन द इमेजिनरी एक्सिस. ओके, कंक्लूजन, स्टेबल सिस्टम लेफ्ट में होता है या रिपीटेड लेफ्ट में होगा या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, लेकिन लेफ्ट में अगर है तो सिस्टम विल बी स्टेबल. क्या 3 केस देखा हम लोगों ने, सिंपल पोल, रिपीटेड पोल्स या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एंड ऑल 3 शुड बी ऑन द लेफ्ट. वी से इट इज अ स्टेबल सिस्टम. Understood? What about unstable case? In case of unstable system, you have pole on the right side as a simple pole, your repeated pole on the right side, or complex conjugate on the right side. या फिर special case, repeated on j omega axis. This is the case of unstable system. What if you have a marginally stable condition? Over there you have non-repeated poles on the j omega axis. अगर समझा है तो आप मुझे ये बताइए, सिस्टम रिस्पॉन्स, सिस्टम स्टेबिलिटी, सिस्टम टाइम कांस्टेंट, दिस ऑल 3 आर डिसाइडेड बाय द पोल. करेक्ट ना, पोल ही डिसाइड करता है सिस्टम रिस्पॉन्स क्या होगा, साइन होगा कि कॉस होगा. सिस्टम स्टेबिलिटी डिसाइड करता है कि स्टेबिलिटी क्या स्टेबल है अनस्टेबल है. टाइम कांस्टेंट इज टाउ. दिस ऑल 3 आर डिसाइडेड बाय पोल. जीरो डज नॉट कंट्रीब्यूट इन ईदर ऑफ दिस. रिस्पॉन्स स्टेबिलिटी में पार्टिसिपेट नहीं करे, जीरो का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, सिर्फ पोल का उसमें योगदान होने वाला है. ओनली पोल इज गोइंग टू पार्टिसिपेट विद रिस्पॉन्स स्टेबिलिटी एंड टाइम कांस्टेंट. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पोल, पोल कैसे मिलता है हम लोगों को, हाउ डू यू गेट पोल? So pole you get when you equate denominator to 0. When you equate denominator to 0, you get the pole of a system. And pole decide, and the poles decide कि हाँ, see poles on the imaginary axis, the response is purely sinusoidal sustained oscillations. If pole is on the right hand side like this form complex conjugate, आपने कहा कि it will be like exponentially increasing with oscillations. अगर मैं कहता हूँ सर नो द पोल्स आर ऑन द लेफ्ट साइड इन द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्मेट, तो आप बोलोगे ओके नाउ इट इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग विद ऑसिलेशंस. अगर मैं कहता हूँ कि नो द पोल इज ऑन द रियल एक्सिस विद नो इमेजिनरी पार्ट, तो आप बोलोगे सर इट इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग. If it is on the left side, it is exponentially decreasing. So can I say the response is given by the pole of a system, stability is given by the pole of a system? So don't you think, since I get pole from the denominator when I equate it to 0, तो ये जो इक्वेशन बन रहा है s square plus 2s plus 2 equal to 0 gives me the characteristic of the system. Don't you think this equation s square minus 2s plus 2 equal to 0 decide the characteristic of the system, the behavior of the system? That is the reason this equation is known as characteristic equation. Understand the terms. Hence this equation is known as characteristic equation.
equate denominator transfer function equal to 0, that polynomial is called as the characteristic equation. Why it is known as characteristic equation? Because that equation is going to give me the characteristic of the system response, system behavior, system stability. These all are given by the poles, and poles are obtained by equating the denominator term to 0. Hence, it is known as CE, characteristic equation. What is the advantage? It helps to determine the stability. Now, what is the disadvantage of transfer function? फटाफट बताइए क्या डिसएडवांटेज है ट्रांसफर फंक्शन का? एक तो मैंने बता दिया आप लोगों को. सर इनिशियल कंडीशन ही देख सकते हैं. क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस. एप्लीकेबल फॉर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ओनली. करेक्ट ना? पहला प्रॉब्लम तो ये होने वाला है. सर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया था? वी स्टडीड अबाउट कॉजल, नॉन कॉजल, लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट. आपने खाली एलटीआई को उठाया, लीनियर टाइम इनवेरिएंट को. टाइम वेरिएंट ने क्या गुना किया था? स्टैटिक ने क्या गुना किया था? स्टेबल ने क्या गुना किया था? उसकी बात ही नहीं करे. ओनली टॉकिंग अबाउट एलटीआई. It is only applicable for time invariant. It is the first drawback. And second drawback, जो ऋतिक को बुरा लगा कि 8 बजे से आया है वो 9:30 बजे को आप में उसको आके बोलते हो कि मजीमिंग बैटरी 0 चार्ज. Loses the importance of initial conditions. This is the two disadvantage of transfer function. Okay. Now, can you obtain a transfer function of this? Simple. क्या करने का ट्रांसफर फंक्शन? आपको सामने क्या दिख रहा है? व्हाट इज देयर इन द फ्रंट ऑन द दिस v ऑफ t में क्या दिख रहा है आपको? 1/sc डिवाइडेड बाय r प्लस sl प्लस 1/sc. You get this equation. Then if you try to resolve it like this, s square lc plus src plus 1, then you take lc outside, then you get like 1 upon like s square plus r by l plus 1/lc. वो आपको टर्म मिलेगा. आपको वीडियो देखो, आप यूट्यूब का को पूरा समझेगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. सेम थिंग फॉर here as well. Again, r plus sl plus 1/sc plus r. Then you again you solve, make it coefficient free, you will get the answer. You go through the video of YouTube, you will understand it, what I'm trying to say. Same thing will get over here. अच्छा, अब ये मेरा क्वेश्चन है मेरे लिए. कोई इसका मुझे आंसर दे सकता है क्या? Can anybody give me the answer of this question? What will be the transfer function of a system whose unit step response is a unit impulse response? A great question है. This is a great question. बोलिए भाई, क्या आंसर आएगा इसका? सब पढ़ा के हो चुका है. Transfer function of a system whose unit step response is a unit impulse function. ट्रांसफर फंक्शन निकालना है फटाफट. बोलिए फटाफट, बताइए क्या आंसर आएगा. इतना टाइम क्यों लग रहा है? सिंपल तो है, उसमें है क्या? व्हाट इज द इनपुट आई एम प्रोवाइडिंग? इनपुट क्या दिया जा रहा है सिस्टम को? व्हाट इज द इनपुट गिवन टू अ सिस्टम? यूनिट स्टेप. स्टेप रिस्पॉन्स. करेक्ट. आराम से input given is step. What is the output I'm getting? Impulse. वो तो लिखिए. आउटपुट अपने को इम्पल्स आ रहा है, इनपुट अपने को स्टेप आ रहा है. डेल्टा टी का लैप्लास क्या होता है? 1 होता है. स्टेप का लैप्लास क्या होता है? 1/s होता है. खत्म. सिंपल. C of s equal to LC of t, R of s equal to L R of t. C of t का लैप्लास is what? 1. R of t का लैप्लास is what? 1/s. So 1/1/s gives you what? S. So transfer function is S. Simple. क्या था उसमें? It was very easy. बस खाली चेक करा था आपका कि आपको कितना समझा है चीजें. व्हाट इज स्टेप रिस्पांस, इम्पल्स, इस इम्पल्स फंक्शन को वो आपको चेक कर रहा था. चलो ये वाला करके दिखाओ, बताओ क्या आंसर आएगा इसका. आई वांट यू ट्राई दिस ऑन योर ओन नाउ, फटाफट. देयर आर 3 stages. Stage number 1, stage number 2 and stage number 3.
This is stage number 1. This is stage number 2. First, second and third. चलो स्टार्ट. इसका आंसर क्या आएगा? 1/SC1 divided by R1 plus 1/SC1. Transfer function of first is over. Transfer function of second V2/V1 क्या होगा? K. गेन वही दिया ना, K एम्पलीफायर का गेन इज K. थर्ड का क्या होगा? 1/SC2 divided by R2 plus 1/SC2. Then you have to multiply them. कोई पढ़ा रहेगा ना आप लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के अंदर. It is like 3 amplifiers are connected in cascade configuration. Fine. So VO by V2, V2 by V1, V1 by VI. You solve this. 1, 2, 3 मल्टीप्लाई करो, आपको ये आंसर मिलेगा. You got the answer. Can you try for this now? Unit step response of a system is y of t equal to 5/2 minus 5/2 e raised to minus 2t plus 5t. क्या आंसर आएगा इसका? आपका आउटपुट ये दिया हुआ है और इनपुट क्या है? यूनिट स्टेप है. तो इनपुट इज 1/s and step, and what is this? 5/2s minus 5/2 dot 1/s plus 2 5 t. What is t का लैपलास? 1/s स्क्वायर है ना, 1/s. सॉल्व करो इसको पूरा. सॉल्व करने के बाद में यू विल गेट दिस एज द आंसर. 10s plus 10/s plus 2. फाइन. ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसका अपने को निकालना है ट्रांसफर फंक्शन VO by VI. तो इसके लिए यू नीड टू गो विद द लैडर डायग्राम वाला लॉजिक. सर्किट थ्री में पढ़ा होगा आपको, भगत सर ने पढ़ाया होगा ये. V2 by V1, then if we say I1, I2, let V2 equal to 1. Then you solve this. अच्छा, now फटाफट you tell me the answer of this fast. Stable, marginally stable or unstable? Stable, marginally stable or unstable? Sir, first वाला stable है. हाँ, why it is stable? Because -2 पे x axis आ रहा है. Correct. Left It is side. on yes, it is stable. Okay, what about second case? -2 plus or minus J4. वो भी x Stable. वो भी stable है. है ना? Stable. You will get Dant oscillation e raised to minus 2t sin of 4t. चलो ये वाला केस -2 plus or minus J. अगेन स्टेबल. Dant oscillation आएगा आपको e raised to minus 2t sin t. J में जो भी होता है that will decide your sign. यहाँ पे क्या बोला आपने? sin of 4t बोला ये वाले केस में. sin of 4t. यहाँ पे क्या बोलने का? sin of t. और what is exponent? e raised to minus 2t, e raised to minus 2t. हाँ, ये वाला केस cos of omega t. ऑब्वियस देख के पता चलता है कि इट इज व्हाट? सस्टेन ऑसिलेशंस. ऐसे आपका ग्राफ आने वाला है ना, फिगर. मार्जिनली स्टेबल. यस. e raised to minus t sin of 4t. तो कैसे बनेगा ये? पोल किधर किधर आने वाला है? -1 प्लस J4 -1 minus J4. देख के पता चलता है यहाँ पे -1 plus J4 -1 minus J4. This will be your pole. What about C? You can see here -1 plus or minus J4. ऐसे आपको ग्राफ बनेगा. S square plus 2s plus 17. करेक्ट ना? अपना फॉर्मूला था ना, S square minus 2as plus a square plus b square. तो 2 1s are 2 और a square plus b square. 4 का स्क्वायर is 16 plus 1 17. It is stable. ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आता है. आपको सिस्टम दिया हुआ है, बोला गया है कि फ्रॉम द पोल जीरो प्लॉट फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन. So you have here and you have this. So you solve this like you say s square plus 4s plus 8 in the numerator, fine, and denominator you will getting what? S square plus 2s plus 5 plus you have one more pole over here at -3. So you say what? S plus 3. So order is 3, type is 0. Order is 3, type is 0. And what is the characteristic equation? The characteristic equation is what? Equating denominator term equal to 0. Fine, so you get this characteristic equation. If we ask what is the DC gain? DC gain क्या होगा? 8/15. 5 to the 15. 8/15. समझा आपको? This completes with the transfer function.
Tomorrow we are going to start with the impulse response on Friday. Friday will tell you the impulse response. What is the impulse response? Basically transfer function. हमने देखा था ना, transfer function is what? Laplace of impulse response. तो उसका मुझे इसका इनवर्स निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन जो भी दिया रहेगा, तो I will get the impulse response. It's as simple as that. So we have covered so far is transfer function and impulse response will be starting with on Friday. Friday ये हो जाना चाहिए. This will get over. So from Tuesday onward, we'll be starting with Fourier transform. Okay, thank you all of you. Can exit. Those who are doubt that can stay, but anyway, it is 10 in the watch. आपका next lecture होगा, so you can solve doubts later. You can leave. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.